social media and online marketing. He is the founder and CEO of Techno Optimize, which is a company which is working towards providing social media and online marketing access to rural businesses. I welcome you, Manish Pandey, to today's session. And I also welcome all of the participants and Dr. OP Sharma, Director NCID. And before starting the session, I would request Dr. Sharma to please share his views on today's session. Thank you, Dr. Sujata. Good morning to all of you. And Manish, good morning. Good morning, sir. Switch on your camera also. देखें तो सही. हाँ. जी सर. Yes, I welcome you all. And as Dr. Sujata has mentioned, in fact, we are trying to share the experiences of our startup founders while registering their company or how they initiated this startup and those all things, so that other students get benefited. Because we believe if a person who has actually gone through that process, if he or she is sharing his experiences, story, then I think that is more appealing and that more connecting to other person's life. That's why we have chosen you, and we know that you are very passionate entrepreneur, and you have been doing a lot of things at your own, and then whatever we have helped you, that's a different thing. But we want your guidance in your that feedback based experience to be known to other students also. That's why this patent facilitation unit has invited you, and we welcome you. And I also welcome all other students, and many more will be joining, I think, because they will join gradually. Otherwise, this session will be available in a recorded format also on YouTube and other social media, because we have seen after that also students get benefit or advantage of such sessions, because these sessions are very important, we have seen. And we would like you to highlight how you thought of this idea, and how you set up your company, and then what kind of legal steps you had to face, and challenges also, how you overcome those challenges, so that if any one of our student who is willing to come in this direction, then how that person should start, and what kind of steps one should take while setting up a startup. So with that, we welcome you, and I welcome all other students also, and hopeful that this session will be very useful to all. So thank you very much for joining, and thanks to all. So Dr. Sujata, you can take it further. Thank you, Dr. Sharma. Thank you so much. Now, Manish, we are all eager to listen to you. And I would like to inform that you can use Hindi and English both languages आप जिसमें comfortable हो, कोई उसमें issue नहीं है. और आप अपनी स्टार्टअप जर्नी के बारे में हमें बताइए, कैसे आपको आइडिया आया, फिर आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए अपनी कंपनी को सेटअप करने में, और how you got registered, and how you set the idea going. So we all want to listen to your experience. So the floor is open to you now. Thank you, ma'am. Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Myself Manish Pandey, और मैं टेक्नो ऑप्टिमाइज का फाउंडर हूँ. टेक्नो ऑप्टिमाइज एक डिजिटल मार्केटिंग स्टार्टअप है जो एम करता है कि हम छोटे साइज से लेके बड़े बिजनेस तक सबको डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज जो हैं लो कॉस्ट में प्रोवाइड कर पाएँ. मैं थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बात करना चाहूँगा. 2018 में मैं एज अ फ्रीलांसर इस वर्क को शुरू किया था, एंड 2021 तक एज अ फ्रीलांसर ही मैंने वर्क किया. उसके बाद मैंने पार्टिसिपेट किया था एनसीआईडी के द्वारा ऑर्गेनाइज बिजनेस प्लान कंपटीशन में, और जहाँ पे मुझे कई सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ी, लाइक बिजनेस प्लान कैनवास बनाना. बिजनेस प्लान कैनवास से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई. फिर एक
आई थिंक एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ा था जिसमें बिजनेस प्लान के सारे टॉपिक्स को डिस्कस करना था। तो जाके क्लियर हुआ कि मुझे एक कंपनी इस पे शुरू करनी चाहिए, एंड देन मैंने डिसाइड किया कि एक कंपनी जो है इस पे हम शुरू करेंगे। तो कंपनी शुरू करने के लिए एक्चुअल में पहले हमने एक ऑफिस स्पेस ढूंढा, और ऑफिस स्पेस के बाद हमने कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड किया। और आज के सेशन में बताऊंगा कि कंपनी रजिस्ट्रेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कितने टाइप्स की कंपनीज होती हैं, उसमें लीगल क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होती हैं कंपनी रजिस्ट्रेशन के, और इस पे हम ग्रो कैसे करते हैं। साथ ही साथ मेरी जो एजेंसी है, जो मेरी कंपनी है टेक्नो ऑप्टिमाइज, वो स्टार्टअप इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है, स्टार्टिंग यूपी से भी रिकॉग्नाइज्ड है। तो मैं उस एक्सपीरियंस को भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो मैं एक पीपीटी के जरिए जो है इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करना चाहता हूँ। पीपीटी विजुअल है सभी को? यस, हाँ, इसको अगर स्लाइड शो मोड में डाल दोगे तो अच्छा रहेगा। ओके सर। स्लाइड शो में जाने के बाद में क्लिक करो और फिर उसको फर्स्ट स्लाइड से कर दो, या नीचे जो आपका एक बना हुआ है ना कप जैसा, जी सर। वहां से आप क्लिक करो। तपनजीत है इधर। तपनजीत, आपका जो अभी सुबह मैसेज था, आई थिंक दैट विल बी एड्रेस्ड बाय मनीष। यस सर। सर पेज, सर स्लाइड विजिबल है पूरी तरह से? स्लाइड तो विजिबल है, लेकिन अगर इसको स्लाइड शो जहां ऊपर जो लिखा हुआ है आपका हेडर में, उस पर जी क्लिक करके और हाँ, एक्चुअल सर मैं स्लाइड शो पर क्लिक कर रहा हूँ, जस्ट मिनट सर। एक काम करो, अपनी एंटायर स्क्रीन सेलेक्ट करना। हाँ, ओके। यस, नाउ इट इज फाइन। So here is the PPT, how to register a company and get startup recognition. इसमें मैं अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करूंगा, एंड इसमें मैं बताऊंगा कि कितने तरह की कंपनीज होती हैं, उसमें क्या लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, एंड कैसे हम एक कंपनी को रजिस्टर करके स्टार्टअप इंडिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो बेसिक टाइप ऑफ कंपनीज में जितनी कैटेगरी एलिजिबल होती हैं स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन के लिए, उसमें आती हैं 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म्स एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एक इससे मतलब इसके बियॉन्ड भी कुछ कैटेगरी है कंपनी की, लाइक सेक्शन 8 कंपनीज एंड निधि लिमिटेड। ये सब कंपनी जो है स्टार्टअप इंडिया के लिए एलिजिबल नहीं होती, बिकॉज सेक्शन 8 कंपनी जो होती है वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह उस सेक्शन 8 में सेक्शन 8 की कैटेगरी में आती हैं। बट अगर हम एज ए स्टार्टअप रिकॉग्निशन और प्रॉफिट मेकिंग के लिए अपने इनोवेशन को या फिर अपनी कंपनी को रजिस्टर कर रहे हैं, उसमें वर्क कर रहे हैं, तो ये 5 टाइप ऑफ कंपनी है जिसमें हम उसको रजिस्टर कर सकते हैं, जिसमें 1% कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप फर्म एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, ये 4 कैटेगरी ऐसी हैं जिसमें हम डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी जो है कुछ दिन वर्क करने के बाद, और इसमें जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं वो काफ़ी अधिक होती हैं, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी एक तरह से एक बेस्ट चॉइस नहीं हो सकती है स्टार्टअप शुरू करने के लिए। और मेरे केस में मैंने अपनी कंपनी को 1% कंपनी के रूप में रजिस्टर किया है, जिसमें सिर्फ एक शेयर होल्डर की जरूरत पड़ती है। लाइक जो कंपनी के टोटल शेयर्स होंगे, शेयर्स मीन्स ओवरऑल 100% ऑफ कंपनी किसी एक इंडिविजुअल के ही हाथ में होती है। एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, एंड डायरेक्टर्स अप टू 15 हो सकते हैं। अब डायरेक्टर एंड मेंबर्स कौन होते हैं? मेंबर्स को हम इजीली समझ सकते हैं कि मेंबर्स वो लोग होते हैं जिन्होंने कंपनी में डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट करा है, जिनके पास कंपनी के शेयर्स होते हैं। एंड डायरेक्टर इज द पर्सन हु कंट्रोल द कंपनी, एंड जो फॉर्मेलिटीज होती हैं कंपनी में, डायरेक्टर उसको कंट्रोल करता है, एंड डायरेक्टर ही ऑथराइज करता है ईच एंड एवरी एक्टिविटी को। एंड मेंबर्स भी डायरेक्टर हो सकते हैं, डायरेक्टर एडिशनल भी हो सकता है।
पार्टनरशिप फर्म में एक कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, एक फर्म के ही रूप में होता है, बट इसमें क्या है कि इसमें टू पार्टनर्स होते हैं, लाइक अगर कोई टू मेंबर हैं, दो लोग हैं, दो इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके फर्म ओपन किया है, तो इसमें कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज वगैरह काफ़ी कम होती हैं, और एक डीड बनता है। डीड आपके नियरेस्ट जो तहसील वगैरह से बन जाता है, उस पर एक रजिस्ट्रेशन हो जाता है, जिसमें हम पार्टनरशिप फर्म को डिफाइन कर देते हैं। एंड लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ टाइप ऑफ कंपनी जिसमें आपको टैक्स जो है वो पार्टनरशिप फर्म के जरिए देना होता है। लाइक जो इंडिविजुअल्स अर्न करेंगे, दोनों इंडिविजुअल्स के जो इनकम आएगा उस पर आपको टैक्स देना होता है। तो ये 4 कैटेगरी ऑफ कंपनीज हैं जो स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन के लिए एलिजिबल होती हैं। बेनिफिट्स ऑफ कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी रजिस्टर करने के बेनिफिट क्या होते हैं? तो सबसे पहला बेनिफिट है कि हमें एक लीगल स्ट्रक्चर मिल जाता है अपने बिजनेस को रन करने का। लाइक अगर हम देखें कि सोल प्रोप्राइटरशिप में या फिर 3-4 लोग हैं काम कर रहे हैं, वहाँ पे सिर्फ एक ब्रांड नेम है, तो वहाँ पे एक लीगल स्ट्रक्चर नहीं है। कोई इंडिविजुअली हम क्या करते हैं कि हम अपने अपने मन से कंपनी को ऑपरेट करते हैं, बट जब व्हेन वी रजिस्टर्ड आवर कंपनी, तो हमें एक लीगल स्ट्रक्चर मिल जाता है बिजनेस का कि हु इज द डायरेक्टर एंड हु इज द पार्टनर, और इसको कौन लोग कंट्रोल करने वाले हैं, एंड कंपनी कैसे इसमें काम करने वाली है। एंड उसमें गवर्नमेंट भी रेगुलेशन में आ जाती है, गवर्नमेंट हमारे कंपनी के इंटरनल मामलों में भी इंटरफियर करती है। वो आगे मैं बताऊंगा। रजिस्टर करने का वो है कि हेल्प टू गेन ट्रस्ट, हमें ट्रस्ट गेन करने में काफ़ी आसानी होती है। जब मैं एज अ फ्रीलांसर वर्क कर रहा था, तो मैंने देखा कि काफ़ी लोग मुझे ट्रस्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि मैं एज अ सिंगल इंडिविजुअल उनके वर्क को अपने ऊपर ले रहा था। बट जब से कंपनी रजिस्टर हुई है, तो हम एक ब्रांड को रिप्रेजेंट करते हैं। वहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं कहता हूँ मैं टेक्नो ऑप्टिमाइज प्राइवेट लिमिटेड, टेक्नो ऑप्टिमाइज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से आया हूँ, मैं उस कंपनी का डायरेक्टर हूँ। तो एक अथॉरिटी, एक हेल्प मिलती है हमें वहाँ पे ट्रस्ट गेन करने में। एंड कंपनी का जो तीसरा बेनिफिट है कंपनी रजिस्ट्रेशन का, वो है सेपरेट एंटिटी। यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कंपनी जो है, लाइक मेरे केस में टेक्नो ऑप्टिमाइज मार्केटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इज अ सेपरेट एंटिटी। वो मैं नहीं हूँ, ना ही मेरी कंपनी का कोई आदमी है, हम लोग कलेक्टिवली एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसका नाम है टेक्नो ऑप्टिमाइज मार्केटिंग सर्विसेज। तो कंपनी एक सेपरेट एंटिटी होती है। एंड कंपनी रजिस्ट्रेशन का तीसरा फायदा, चौथा फायदा है जो वो है इजी टू ट्रांसफर ओनरशिप। इसमें ओनरशिप वगैरह का एक जो शेयर्स होते हैं, लाइक 100% शेयर मेरे पास है, तो उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं किसी और को। तो कंपनी ट्रांसफर करने में या फिर किसी से इन्वेस्टमेंट लेने में उसको 30% देने में, ऐसा कुछ अगर कोई कहता है कि 30% आप कंपनी मुझे दे दो एंड आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी, ऐसे इन्वेस्टमेंट मिलते हैं, तो वहाँ पे भी हमें काफ़ी आसानी होती है एज अ कंपनी इन्वेस्टमेंट लेने में। एंड कंपनी का अपना एक एग्जिस्टेंस होता है। फाइनेंस, कैपिटल रेज, लोन पे ऑफ में भी कंपनीज को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इन कंपेरिजन ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म्स। एंड गवर्नमेंट टेंडर्स हमेशा कंपनीज को ही दिया जाता है। अगर कोई इंडिविजुअल चाहे एज अ फ्रीलांसर कि वो गवर्नमेंट टेंडर्स को पर बिड कर पाए एंड टेंडर्स को ले पाए, तो उसमें कंपनीज को ही प्रायोरिटी दी जाती है एंड टेंडर्स वगैरह उन्हीं को होता है। एज अ कंपनी आप ग्लोबली रीच कर सकते हैं ग्लोबल कस्टमर के साथ। लाइक हम इस समय एक वेबसाइट पे वर्क कर रहे हैं जो कि वियतनाम देश की वेबसाइट है, एंड दे आर गोइंग टू वर्क इन इंडिया, तो उनकी वेबसाइट्स पे हम इस समय वर्क कर रहे हैं। और इस तभी संभव हो पाया जब एज अ कंपनी हम वर्क कर रहे हैं। एज ए इंडिविजुअल वो प्रोजेक्ट हमारे हाथ में नहीं आ पाया होता। एंड इसमें कंपनीज में हायर लिमिट नहीं होती है पर ट्रांजेक्शन की। आपकी कंपनी अगर सर्विस बेस्ड है, प्रोडक्ट बेस्ड है, तो आप इसमें पर ट्रांजेक्शन, लाइक अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में हैं एंड आप ऑपरेट कर रहे हैं अपने करेंट अकाउंट या फिर सेविंग अकाउंट से, तो भी आपको एक समस्या का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें है कि कभी ट्रांजेक्शन आपके रुक सकते हैं। एंड नेक्स्ट बेनिफिट है आईएसओ सर्टिफिकेशन। आईएसओ सर्टिफिकेशन हमेशा कंपनीज को ही दिया जाता है, और आईएसओ सर्टिफिकेशन ये आपके स्टैंडर्ड को डिफाइन करता है कि लाइक गवर्नमेंट एंड अदर कंपनी जो आपके साथ वर्क करने जा रही हैं या फिर आपका कस्टमर ही, तो आईएसओ सर्टिफिकेशन देख के वो आप पे ट्रस्ट करता है। एंड एक कंपनी आप इस्टेब्लिश कर लेते हैं, उसके अंदर आप मल्टीपल ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल टेक्नो ऑप्टिमाइज मार्केटिंग सर्विसेज में हम लोग कई सारे ब्रांड्स फ्यूचर में लॉन्च करने वाले हैं, लाइक टेक्नो प्रिंट्स हो गया एंड टेक्नो वेब हो गया, ऐसे कुछ करके। तो कई सारे ब्रांड्स एक कंपनी के अंदर एग्जिस्ट कर सकते हैं, जिसे हम कर सकते हैं। और साइड में आप देखोगे कि कंपनी की कंट्रोलिंग लाइन में शेयर होल्डर डायरेक्टर, कंपनी में मल्टीपल डायरेक्टर होते हैं जो शेयर होल्डर होते हैं, जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए होते हैं, और डायरेक्टर मिलकर कंपनी को कंट्रोल करते हैं। एंड कंपनी इज अ सेपरेट एंटिटी।
कंपनी रजिस्ट्रेशन जब हम करने जाते हैं तो कुछ जनरल टर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, लाइक CIN। अगर आप कंपनी रजिस्टर करने वाली फर्म से बात करेंगे तो आपको CIN के बारे में बताएंगे। एक कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नंबर होता है, जो कि कंपनी का एक रजिस्ट्रेशन नंबर हम इसे कह सकते हैं, और इसे आप कंपनी का आधार नंबर कह सकते हैं। लाइक एक आपको कुछ नंबर्स एंड लेटर्स को मिला करके एक नंबर आपको दिया जाएगा आपकी कंपनी को, जिससे आइडेंटिफाई होगा कि ये आपकी कंपनी है एंड इसका CIN नंबर, कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर ये है। डिन नंबर उसमें आता है, जो कि होता है डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि अलॉट किया जाता है सभी डायरेक्टर्स को एंड जो भी उसके प्रमोटर्स होते हैं। लाइक प्रमोटर्स में आते हैं शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर्स, उनको डिन नंबर दिया जाता है और डिन नंबर से आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये इंडिविजुअल जो है इस कंपनी में डायरेक्टर है। एंड डिन नंबर के जरिए हम ये भी पता कर सकते हैं कि वो लाइक मैं मनीष पांडे, मुझे एक DIN नंबर अलॉट हुआ है और इन फ्यूचर मैं किसी भी कंपनी में डायरेक्टर रहूंगा, इन फ्यूचर मैं किसी भी कंपनी को ज्वाइन करता हूँ एज ए डायरेक्टर, या फिर मैं कोई अपनी नई कंपनी शुरू करता हूँ, मेरा डिन सेम रहेगा। इट्स लाइक अ पैन नंबर, आधार नंबर, जो कि मेरे पूरे लाइफ टाइम तक सेम रहेगा। तो डिन नंबर हमेशा सेम रहता है, और किसी भी कंपनी में आप एज ए डायरेक्टर अलॉट होते हैं तो वहाँ पे डिन नंबर के जरिए पता चल जाता है कि किस कंपनी में ए डायरेक्टर हैं। कंपनी का अपना एक पैन नंबर होता है सर एक क्वेश्चन परमानेंट। था मेरा। जी। जैसे कि कंपनी आपने शुरू की है तो उसमें पार्टनर्स होना जरूरी होता है, आप सोल ओनरशिप के साथ कंपनी शुरू नहीं कर सकते क्या? देखिए, कंपनीज एक्ट 2013 में एक रूल आया जिसमें आप OPC कंपनी शुरू कर सकते हैं। पहले क्या था कि आपको पार्टनर्स की जरूरत पड़ती थी, बट कंपनीज एक्ट 2013 में चेंज किया गया है, जहां पे आप सिंगल ओनर एज अ OPC कंपनी शुरू कर सकते हैं। मेरी खुद की कंपनी OPC है, 1% कंपनी, जहाँ पे पूरी कंपनी का जो शेयर्स होते हैं, जो अथॉरिटी होती है, पूरे कंपनी का कंट्रोल एक आदमी के हाथ में होता है, एंड उसके अंदर आप कई सारे डायरेक्टर्स एंड वगैरह वगैरह रख सकते हो। जैसे कि मेरा एक इवेंट प्लानिंग का बिजनेस है, तो मैं जी। उसको आगे जाकर एज अ कंपनी मतलब रजिस्टर्ड करना चाहती हूँ कि वो एक कंपनी जैसे हो, जैसे कि वेडिंग डिजाइन कंपनी है ओके। वंदना मोहन जी की। तो ओके। उसके लिए मुझे मतलब क्या करना पड़ेगा? अभी मैं आगे प्रेजेंटेशन में आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकती हैं, और आप ठीक। एज ए सिंगल ओनर कंपनी को रजिस्टर कर सकती हैं। इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। ये पहले था, ठीक। 2013 के पहले प्रॉब्लम थी। अभी एक सभी से रिक्वेस्ट ये है कि आप पहले सुन लीजिए, उसके बाद अपने क्वेश्चन आंसर पूछिएगा। ठीक है, हो सकता है बहुत सारी चीजें आपकी ऑलरेडी कवर हो जाएं, नहीं हो देन यू काइंडली आस्क योर सर, क्वेश्चन। मैंने PPT डिजाइन करी ऐसे कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सारी चीजें इसमें जो है कवर मैं कर दूँ। हाँ नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि पहले जी। आपका ये लेक्चर सुन लें, उसके बाद में अगर कोई चीज कवर नहीं होती है तो फिर आप बात करिए, इंटरेक्ट करिए, जरूर क्वेश्चन आंसर करिए। ठीक है, बीच में न टोकें तो अच्छा है। ओके, अ, सॉरी सर। फिर एक टैन नंबर अलॉट होता है आपकी कंपनी को, जो कि टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर होता है, जो आपकी कंपनी का जो ईयरली हम इनकम टैक्स पे करते हैं। अगर कंपनी 20 लाख के अबव प्रॉफिट अर्न करती है एंड इन सम रीजन 40 लाख के अबव, तो टैन नंबर के जरिए जो है CA जो है हमारा इनकम टैक्स पेमेंट करता है। और फिर आता है DSC, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। लाइक वी हैव टू साइन मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स एंड सबमिट मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स टू गवर्नमेंट। तो सारे सिग्नेचर जो है, हम ना कि फिजिकल सिग्नेचर, बट उसको हम USB टोकन टाइप का होता है, और इससे हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सिग्नेचर करने के काम आता है। एंड सिक्स मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो कंपनी रजिस्ट्रेशन में आता है, MOA, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिफाइन करता है कि कंपनी की अपनी एक एग्जिस्टेंस है, इस कंपनी में कितने शेयर होल्डर्स हैं, कितने डायरेक्टर हैं, एंड व्हाट इज मतलब कंपनी करने क्या जा रही है। एमओए में ये सभी चीज़ें डिफाइन होती हैं। AOA एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कंपनी रजिस्ट्रेशन में काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या है कि कंपनी का जो इंटरनल अफेयर है, लाइक हाउ द कंपनी इज गोइंग टू वर्क, इन विच सेक्टर, क्या इनके काम हो सकते हैं, सारी पॉसिबिलिटीज इसमें डिफाइन होती हैं। इसको बोलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। पार्टनर एंड शेयर होल्डर, शेयर होल्डर पार्टनर उन्हें कहते हैं जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिनका पैसा लगने जा रहा है। डायरेक्टर वो होता है कि जो कंपनी को कंपनी में एज ए डिसीजन मेकर, लाइक अगर पार्टनर भी डिसीजन लेता है बट बिना डायरेक्टर के सिग्नेचर के आप उसे ऑथराइज नहीं कर पाएंगे। तो डायरेक्टर ही सब कुछ होता है कंपनी में। एंड जो प्रमोटर्स होते हैं कंपनी के, प्रमोटर्स होते हैं शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर को मिला करके प्रमोटर्स बनते हैं। लाइक डायरेक्टर और शेयर होल्डर को कलेक्टिवली हम प्रमोटर्स बोल सकते हैं।
एंड कंपनी सेक्रेटरी एक सेपरेट एंटिटी को आप हायर कर सकते हैं या फिर अलग से किसी इंडिविजुअल को हायर कर सकते हैं, जो कि एज ए सीएस का एक लाइसेंस होता है जो गवर्नमेंट से प्राप्त कर चुका है, तो उसे, और वो गवर्नमेंट और आपकी कंपनी के बीच में कम्युनिकेशन का काम करता है। लाइक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, कंपनी की बैलेंस शीट वगैरह गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना एंड गवर्नमेंट के सामने आपके इनकम को रखना, ये सारा काम जो है कंपनी सेक्रेटरी देखते हैं। मैंने एक्चुअली रजिस्टर कैसे करी थी कंपनी, आप देखो जितनी टर्म्स मैंने पहले बताया, DSC, MOA, AOA, DIN, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स लग रही होंगी, बट सिंपली आप किसी एक फर्म को देख सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, ऑनलाइन कई सारी फर्म्स ऐसी हैं जो एक्टिव हैं, और वहाँ से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वो जो है आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन में आपकी हेल्प करेंगी। उनको सिर्फ आपको अपना पैन कार्ड नंबर, आधार एंड आपको अपनी फोटोज वगैरह एंड स्पेसिमेन सिग्नेचर, मतलब जो सिग्नेचर आप करते हैं वो उनको प्रोवाइड करना होगा एंड दे रजिस्टर योर कंपनी। आपको उन्हें बताना होगा कि आप इस कंपनी में क्या करने जा रहे हैं, कंपनी का मेन फंक्शन क्या होने वाला है और कंपनी का एम क्या है। तो MOA, AOA, DIN, DSC एंड जितनी पैन टैन सारा रजिस्टर करके वो आपको दे देंगे। एंड मैं कंपनी रजिस्टर होने के बाद वो जो ऑनलाइन बिजनेसेस हैं वो आपसे चार्ज करते हैं 40 to 50,000 रुपीज़ की आस्क करते हैं पूरे ईयर आपकी कंपनी को संभालने के लिए। तो मैंने वहाँ से अपना डिसीजन चेंज किया, उनसे कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद मैंने अपने फादर के रेफरेंस में एक CS फर्म को चुना और उनसे मैंने पूरा डिस्कस किया कि मतलब कितने पैसे लगने वाले हैं पूरे ईयर तक कंपनी ऑपरेट करने में। तो उसमें कुछ गवर्नमेंट फीस होती है एंड वो चार्ज होता है। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ऑनलाइन कंपनीज काफ़ी सस्ते में कर देती हैं क्योंकि वो फ्यूचर में आपसे बेनिफिट लेने जा रही हैं। बट आप एक इसमें ट्रिक यूज कर सकते हैं जिसमें आप कंपनी रजिस्टर ऑनलाइन करा के अपने किसी रेफरेंस में एक CS फर्म को हायर कर सकते हैं, या फिर आप उनसे बार्गेनिंग करेंगे। ऑनलाइन जो कंपनियां हैं जो CS फर्म हैं उनसे बार्गेनिंग करेंगे तो भी हो जाएगा। और कंपनी चलाने के लिए OPC हो, प्राइवेट लिमिटेड हो या फिर पार्टनरशिप फर्म हो, आपको CS की जरूरत पड़ती है, वो भी लाइसेंस CS। तो एक मैंडेटरी चीज है गवर्नमेंट की साइड से, आपको CS अलॉट करना पड़ेगा अपनी कंपनी में, जो आपकी कंपनी के सारे इंटरनल अफेयर्स को एंड डॉक्यूमेंट्स वगैरह को प्रिपेयर करता है, मेंटेन करता है और गवर्नमेंट से कम्युनिकेट करता है। और मेरी कंपनी के रजिस्ट्रेशन में टोटल रजिस्ट्रेशन जो मैंने ऑनलाइन कराया था कंपनी से, उसमें मुझे 5,189 रुपीज़ पे करने पड़े थे, जिसमें मुझे DSC, MOA, AOA, DIN नंबर, इन सारी चीज़ें, ये सभी चीज़ें मेरे लिए, मतलब मेरी कंपनी जो है रजिस्टर हो गई और ये सारी चीज़ें मुझे मिल गई। बट अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराते हैं और उसमें आपके मतलब मतलब 2 या 2 से अधिक मेंबर्स हैं आपकी कंपनी में, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज देना पड़ सकता है, क्योंकि जो DSC है एंड DIN नंबर है इसका 1000 रुपीज़ का फीस कटता है। तो जितने डायरेक्टर्स होंगे उतना 1000 रुपीज़ इसमें इन्वॉल्व होगा। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसमें टू और मोर मेंबर्स हैं उसमें आपको थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है। मैंने पे किया है कंपनी रजिस्ट्रेशन में 5,189 रुपीज़ एंड अलॉटमेंट ऑफ CS फर्म, एक टर्म है जहाँ पे आप कंपनी सेक्रेटरी को अलॉट करते हो अपनी कंपनी के देख रेख के लिए। तो वहाँ पे अलॉटमेंट के लिए मुझे 1900 पे करने पड़े थे। वन टाइम KYC होती है पूरे ईयर में, डायरेक्टर KYC, जहाँ पे आप आपको अपना आधार और पैन कार्ड नंबर गवर्नमेंट को बताना पड़ता है और ये बताना पड़ता है कि मैं जीवित हूँ। इसके लिए एक KYC होती है, डायरेक्टर KYC सारे ईयर्स में। तो 1000 रुपीज़ उसका मेरे को लगा है। एंड AGM एनुअल जनरल मीटिंग, एक मीटिंग करनी होगी आपको कंपनी से। कंपनी में OPC कंपनी है तो आप अपने CS के साथ एक मीटिंग करके गवर्नमेंट को बताना होता है कि व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ कंपनी, कंपनी का फ्यूचर कैसे होने वाला है, हम लोग क्या काम कर रहे हैं वगैरह। और एनुअल ROC फाइलिंग में हम अपनी कंपनी का बैलेंस शीट, जिसमें हम प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट एंड कंपनी पास करंट एसेट्स कितने हैं, कंपनी ने किस किस कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, कितने शेयर्स कंपनी के पास हैं, ऐसा कुछ पूरे ROC फाइलिंग हम देते हैं। और इनकम टैक्स, अगर आप इनकम टैक्स के अंडर आते हैं, आपका प्रॉफिट उसके अंदर आता है तो उसको फाइल करना होता है। तो उसका 12,000 रुपीज़ मैंने पे करा है। गवर्नमेंट फीस में 6,000 रुपीज़ है, जिसमें कई सारे नोटरी चार्जेस, स्टैम्प पेपर की फीस वगैरह आती हैं। एंड 6,000 मेरा CS मुझसे फीस लिया है। ये जो अमाउंट है, जब आप कंपनी में ज़्यादा अर्निंग करेंगे और आपकी कंपनी का टर्नओवर काफ़ी हाई होगा तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ सकता है। टोटल 1 ईयर ऑपरेट कर चुका हूँ मैं अपनी कंपनी, और 1 ईयर ऑपरेशन में मुझे 18,189 रुपीज़ पे करने पड़े हैं कंपनी ऑपरेट करने के लिए। एंड दिस इज फॉर OPC कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में यह 20 से 22 हज़ार रुपये लग जाएंगे। एंड इसके बाद आता है कि हम स्टार्टअप इंडिया से रिकॉग्निशन कैसे लें। लाइक अगर हमारा स्टार्टअप इंडिया में उनकी वेबसाइट पे एक क्लियरली मेंशन है कि अगर आप कहीं
नए सेक्टर में वर्क कर रहे हैं या फिर आपका इनोवेशन है, तो आप स्टार्टअप के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। तो स्टार्टअप रिकॉग्निशन लेने के लिए सबसे पहले आपको अपनी कंपनी को रजिस्टर कराना पड़ेगा, जो कि प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, 1% कंपनी होनी चाहिए, पब्लिक एलएलपी होनी चाहिए, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फर्म होना चाहिए। इन चारों कैटेगरी में आपको कंपनी को रजिस्टर कराना ही पड़ेगा, तब जाके आप स्टार्टअप इंडिया के लिए एलिजिबल होते हैं। स्टार्टअप इंडिया रिकॉग्निशन के लिए सबसे पहले हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम गवर्नमेंट का एक पोर्टल है, NASWS.gov.in पे हम विजिट करते हैं, तो वहाँ पे एक सर्च बॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पे हम स्टार्टअप लिख के सर्च कर देंगे तो हमें एक ऑप्शन मिल जाता है अपने स्टार्टअप को रजिस्टर करने का। या फिर आप उसे मैनुअली सर्च कर सकते हैं। अप्रूवल्स में जाके आप सेंट्रल अप्रूवल्स में जाएंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे DIPP, तो वहाँ पे आपको स्टार्टअप का ऑप्शन मिल जाएगा। स्टार्टअप इंडिया का एप्लीकेशन आपको सामने मिल जाएगा। स्टार्टअप इंडिया एप्लीकेशन में हमें बेसिकली जो है कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती हैं, लाइक कंपनी का जो रजिस्ट्रेशन इन्फॉर्मेशन है, CIN DIN एंड इनकॉर्पोरेशन की जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेंगी कंपनी रजिस्टर होने के बाद, वो इन्फॉर्मेशन होती हैं। एंड उसके बाद जो स्टार्टअप आपका एक जो अपने कंपनी जो आपकी कंपनी है वो स्टार्टअप कैसे है, उसके लिए आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा कि मार्केट की क्या प्रॉब्लम है जिसको आप सॉल्व करने जा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है, आपके टारगेट मार्केट की साइज़ क्या है, आप अपने टारगेट मार्केट तक कैसे रीच करेंगे, और आपके स्टार्टअप को कोई क्यों चुनेगा, एंड फ्यूचर और अदर पॉइंट को डिस्कस करके आप वहाँ पे अपने एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं। तो आपको अगर आप उनके पैरामीटर्स पे खरे उतरते हैं अगर, तो आपको आपकी कंपनी को एक रिकॉग्निशन मिल जाता है और आपको DIPP नंबर अलॉट किया जाता है। लाइक मेरे केस में मेरी कंपनी का DIPP नंबर है 118972। ये जो है आपको DIPP नंबर मिल जाएगा, तो आप स्टार्टअप रिकॉग्निशन आपको मिल जाएगा आपकी कंपनी को। उसके बाद सीड फंड स्कीम के लिए गवर्नमेंट का एक पोर्टल है seedfund.startupindia.gov.in, वहाँ पे जाके हमें एक और एप्लीकेशन देना होता है। सारे इन्फॉर्मेशन हमें देने होंगे वहाँ पे जो हमने स्टार्टअप इंडिया का एप्लीकेशन में दिए थे। पर यहाँ पे आपको एक अपनी कंपनी का पिच डेक वहाँ पे देना पड़ेगा। लाइक पिच डेक इग्नू के कई सारे मीटिंग्स में बताया गया है कि पिच डेक कैसे बनाते हैं। पिच डेक एक डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे हम बताते हैं कि कंपनी किन किन फील्ड्स में जा रही है वर्क करने, और कंपनी में किस किस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जा रही है, टारगेट मार्केट क्या है, मार्केट साइज क्या है, और सारी चीज़ों को हम डिफाइन करते हैं एक पिच डेक में। उस पिच डेक को हमें सीड फंड की वेबसाइट पे अपलोड करना होता है, और वहाँ पे उस एप्लीकेशन में हमें कुछ इंक्यूबेशन सेंटर्स चूज करने होंगे जो हमारी इंडस्ट्री के लिए वर्क कर रहे हैं। इन माई केस कई सारी इंक्यूबेशन सेंटर की लिस्ट आई थी, लाइक IIM काशीपुर, कृष्णा एजुकेशन फाउंडेशन, DTU, कई सारी इंक्यूबेशन सेंटर जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं। यूनिवर्सिटीज के पास, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के पास अपने इंक्यूबेशन सेंटर होते हैं। तो आपको जो पसंद आए वहाँ से आप 3 इंक्यूबेशन सेंटर को चूज कर सकते हैं और उनके साथ अपना एप्लीकेशन भेज सकते हैं। बाद में इंक्यूबेशन सेंटर जो है आपकी स्क्रीनिंग करेंगे, आपको फिर उनसे गूगल मीट करना पड़ सकता है, या फिर आपसे कुछ क्वेश्चनर वो पूछेंगे, कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछेंगे, आप उन्हें बताते हैं। अगर वो सेटिस्फाई होते हैं क्वेश्चन से एंड उन्हें लगता है कि आपके स्टार्टअप में पोटेंशियल है, तो आपको गवर्नमेंट फंडिंग के लिए रिकमेंड कर देते हैं। एंड रिकमेंडेशन के बाद आपको फंड्स जारी किए जाते हैं। उन फंड्स का यूज करके आप अपने स्टार्टअप को बढ़ाते हैं, और वीकली और मंथली इंक्यूबेशन सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब कब मीटिंग आपसे कर रहे हैं। मेरे केस में मेरा इंक्यूबेशन सेंटर मुझसे वीकली मीटिंग होती है और मुझे बताना पड़ता है कि मैं उनके फंड का यूटिलाइजेशन कैसे कर रहा हूं और कंपनी किस स्टेज तक पहुंच चुकी है। अभी मेरी कंपनी आइडिएशन स्टेज पे थी, एंड जब फंडिंग हो गई है तो उसका स्टेज वहां पे चेंज कर दिया गया है। तो वीकली मीटिंग में हमें बताना होता है। जो सीड फंडिंग है गवर्नमेंट के थ्रू, वो है ग्रांट मिलता है हमें 20 लाख रुपीस तक। ग्रांट को मैं डिफाइन करना चाहूँगा। ग्रांट जो होता है वो हमें वापस नहीं करना होता है, वो गवर्नमेंट हमारी कंपनी में निवेश करती है। ये सिर्फ उनके लिए एलिजिबल है जो आइडिएशन स्टेज पे हैं। उनको प्रोटोटाइप डेवलप करने के लिए, अपनी कंपनी को स्टेब्लिश करने के लिए 20 लाख रुपीस तक का ग्रांट मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उनका जो मार्केट का पोटेंशियल है, उनकी कंपनी का जो फ्यूचर है वो कितना ब्राइट है। एंड अगर आप पहले से ही अपने ऑपरेशन शुरू कर चुके हैं एंड यू हैव ऑलरेडी कस्टमर्स, आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, तो आप उसको बढ़ाने के लिए, मार्केटिंग वगैरह के लिए 50 लाख रुपीस तक का लोन आप अप्लाई कर सकते हैं स्टार्टअप इंडिया के थ्रू। एंड इस सीड फंडिंग में जो हमें बेनिफिट मिलेगा 50 लाख रुपीस लोन लेने का, लाइक अगर आप जनरल टर्म में देखिए तो जो बैंक्स वगैरह हैं, जो NBFC कंपनीज जो बिजनेस लोन प्रोवाइड करती हैं, उनका जो इंटरेस्ट होता है वो 11 to 20% के बीच में रेंज करता है। बट अगर आप सीड फंड इंडिया से अगर आप लोन कराते हो तो आपको
4.5 से लेकर के 6.5% के बीच में ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी कम है रिलेटिवली, और आपके इन्फ्लेशन के बराबर है। तो यहाँ से लोन का भी आप यहाँ से चूज कर सकते हो। तो इस पीपीटी को भी मैं अगर कोई लिंक वगैरह मिलेगा तो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो ये पूरा रहा अनुभव, ये पीपीटी मेरे द्वारा बनाई गई है, मनीष पांडे, एंड आई एम ए डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, और हम लोग कंपनीज को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को एंड हॉस्पिटल्स को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आप देख सकते हैं, एंड मेरी कंपनी की वेबसाइट है technooptimize.in, जहाँ पे आप जाके मेरी कंपनी का पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। एंड हमसे जुड़ के, हमसे अगर हमारे लायक कोई सेवा हो तो हमें जरूर बताएं। थैंक यू। अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछें। तपनजीत, एक बार आप कंपनी सेक्रेटरी अलॉट कर देंगे तपनजीत भाई, तो आपको 1 ईयर तक उनके साथ वर्क करना पड़ेगा। आप बीच में भी उनको टर्मिनेट कर सकते हैं, बट ये बहुत कम केस में होता है। कंपनी सेक्रेटरी का ज़्यादा वर्क नहीं होता अभी कंपनी में। मैंने जो है पूरे ईयर में 4 से 5 बार उनसे इंटरेक्ट करा है। एक बार डायरेक्टर केवाईसी के लिए, एक बार एजीएम के लिए, एनुअल जनरल मीटिंग के लिए, एंड आरओसी फाइलिंग के लिए। ट्रेडमार्क फीस, ट्रेडमार्क का अगर आप वर्ल्ड ट्रेडमार्क लेते हैं तो 6,000 रुपीज लगेगा। एंड कंपनी, अगर आप आईएनसी फॉर्म अप्लाई करते हैं, कंपनी का आपका यूनिक नेम है, तो आपको ट्रेडमार्क की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर हो चुकी है। स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेशन के लिए आपने खुद से हाँ, स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेशन के लिए मैंने खुद से अप्लाई करा था, और जो भी इंफॉर्मेशन थी मैंने खुद से दिए थे। स्टार्टअप इंडिया का रिकॉग्निशन आप कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 10 साल के अंदर अंदर ले सकते हैं। मनीष भाई, जैसे स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेशन के लिए आपने अप्लाई किया था, तो आपको कितने ओके। दिन लगे थे जब आपको स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेशन अलॉट हो गया? 12 दिसंबर 2023 को मेरी कंपनी जो है रजिस्टर हुई थी, एंड 9th ऑफ जनवरी को मैंने रजिस्टर करा था। 21 जनवरी को मुझे मिल गया था रिकॉग्निशन। अच्छा मनीष भाई, एक छोटा सा क्वेश्चन और था। ओके। जैसे स्टार्टअप इंडिया जब हम सर्टिफिकेशन लेते हैं, तो मैं पढ़ रहा था कि उसमें कहते हैं कि जब हम पेटेंट या ट्रेडमार्क को फाइल करते हैं तो ओके। उसमें हमें 60 to 80% का मतलब बेनिफिट होता है, वो कम लगता है। तो क्या आपका स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेशन के बाद आपने ट्रेडमार्क लिया, क्या किया, कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? नहीं, ट्रेडमार्क एक्चुअली जो मेरा वर्ड मार्क है टेक्नो ऑप्टिमाइज, जो कोई और ना यूज कर पाए, तो बस मैंने कंपनी रजिस्ट्रेशन के पहले ही उसे रजिस्टर कराया था, एंड 6,000 रुपीज मुझे लगे थे। उसमें 55,000 के अप्रॉक्स जो है गवर्नमेंट फीस है, एंड 1,000 कंसल्टिंग चार्ज लेते हैं वकील। इसमें भी आपको एक रजिस्टर्ड वकील की जरूरत पड़ती है, जो अपनी आइडेंटिटी लगा के आपका ट्रेडमार्क फाइल करते हैं। अच्छा, और वो आपने बताया कि आपने कंपनी रजिस्ट्रेशन से पहले किया है, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम कंपनी रजिस्ट्रेशन से पहले ट्रेडमार्क हाँ, ले लें? अगर आप बिल्कुल बिल्कुल विदाउट अ कंपनी भी आप एक ट्रेडमार्क ले सकते हैं अपने अपने नाम पे। ओके, थैंक यू सो मच। मनीष, थैंक यू, वेरी नाइस प्रेजेंटेशन, वेरी नाइस। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, और जैसा इनको जरूरत थी। मैं तो जैसे तपन की बात कर रहा हूँ, तपन जी इज क्वाइट एंथुसियास्टिक, और बहुत बार बार कहते हैं मैं कैसे करूं। तो बहुत अच्छा, सिंपल सरल भाषा में, और सारी चीजें आपने कवर की हैं। अब किसी को क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो आपके दिमाग में आ रही होंगी और जो जानना चाहेंगे। अजय, यस अजय। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है मनीष मनीष जी? हाँ, बताइए सर। गुड मॉर्निंग सर। सर गुड मॉर्निंग। morning. मनीष सर, मेरी एक क्वेरी है जो आप ही सॉल्व कर सकते हो अभी, और मुझे बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन लगा। शायद इसकी रिकॉर्डिंग हमें यूट्यूब पर मिल जाएगी, और वहाँ से हम और लोगों तक इसको शेयर कर पाएंगे। सो मेरी क्वेरी ये थी कि एक तो मेरा प्रोडक्ट है ई स्किल भारत, वो ई लर्निंग से रिलेटेड है, और अभी 3 मंथ से मैं एक अलग प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है AKC24। आपको आवाज़ आ रही है मनीष सर? हाँ हाँ, आवाज आ रही है आपकी। AKC24 ई स्किल भारत से थोड़ा एक स्टेप आगे चल रहा है, बट वो भी एक एजुकेशनल प्रोडक्ट है, कभी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बट मैं ये जानना चाह रहा था, और ये आप मुझे
एक सजेशन दीजिएगा, क्योंकि आज से मैं और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगा थोड़ा टाइम निकाल के। मैं जब सीए के पास गया, ई स्किल भारत का अलग मैटर है जो मेरा एक प्रोडक्ट है, लेकिन मैं 3 से 4 सीए के पास गया यहाँ भोपाल में। तो उनका एक ये कहना था कि अगर आप स्टार्टअप इनिशिएटिव की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं या डीपीआईआईटी रिकॉग्नाइजेशन चाह रहे हैं, इंक्यूबेशन चाह रहे हैं, फंडिंग चाह रहे हैं, तो अभी आप न्यू हैं, आप थोड़ा रुक जाइए। बिकॉज मैंने उनको कहा कि मैं एमएसएमई रजिस्टर हूं और एनआईसी नंबर आई हैव गॉट, क्योंकि अभी एमएसएमई ने नया सेक्टर शुरू किया है। शायद मैं फॉर्चुनेट हूं उसके लिए कि जब मैं आया इस फील्ड में थ्रू अ इग्नू रिकॉग्निशन, तब एजुकेशन को एमएसएमई ने एक सर्विस कैटेगरी दे दी है। शायद ये फॉर्चुनेटली मुझे मिल गई ये चीज। तो उस सर्विस सेक्टर में 8050 एनआईसी के थ्रू मैं रजिस्टर हूं। मुझे आपसे ये सजेशन चाहिए कि AKC 24 के लिए सीए भी मुझे बोल रहे हैं कि देखिए कंपनी फॉर्म करना नॉट अ बिग थिंग, 1 साल के बाद जो आपको फॉर्मेशन देना पड़ता है वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है, चाहे आप कमाए चाहे ना कमाए, एक सर्टेन अमाउंट तो यू विल पे टू सीए। तो मैं आपसे ये सजेशन लेना चाह रहा था, क्या मैं उनकी बात मानूं और अभी AKC 24 जिसको 2 या 3 महीने हुए हैं, मैं एमएसएमई के बेसिस पर ही अर्निंग शुरू करूं और उस अर्निंग को उस स्टेज तक लेकर के जाऊं जहां पे मैं कंपनी फॉर्म करूं? तो क्या मुझे कंपनी के लिए अभी रुक जाना चाहिए? ये मेरा एक क्वेश्चन है जिसमें आप प्लीज सजेस्ट कीजिए, तो मैं उस पे आगे की तरफ वर्क करता हूँ। एक्चुअल में देखिए, कोई भी बिजनेस होता है, लाइक अगर सीएस फर्म को ही देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं एक डर होता है। लाइक मुझसे अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग सर्विस ले रहा है तो कहीं ना कहीं उसे डर है कि मेरी प्रोडक्ट नहीं बिक रहे हैं। तो सीएस कंपनीज भी हमें उसके लिए तैयार करती हैं। लाइक अगर आप ऑनलाइन भी अपनी कंपनी को रजिस्टर कराएंगे तो वो बोलते हैं कि 50,000 रुपीज मिनिमम आपको पे करना पड़ेगा पूरे ईयर के लिए। बट अभी इन रियलिटी अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट की जो फीस है एक कंपनी के ऊपर, जो डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रोवाइड करने होंगे, लाइक एक डायरेक्टर केवाईसी के साथ आपको 5 to 800 के बीच में कुछ एक स्टैम्प पेपर्स वगैरह मेंटेन करके उनको देना पड़ेगा। एंड प्लस आरओसी फाइलिंग के लिए 1000 रुपीज के 2 स्टैम्प पेपर्स आपको लगेंगे। स्टैम्प पेपर इसलिए यूज होता है कि जहां पे हम किसी चीज की प्रमाणिकता को रखते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट को हमें फी पे करना पड़ता है। एंड इसमें सीएस जो है अपना कुछ सर्विस चार्ज रखते हैं। तो जब आप एक कंपनी फॉर्म कर रहे हैं तो वहां पे यहाँ पे क्या है कि प्राइस जो है कोई फिक्स नहीं है। और मेरे केस में क्या है कि जो मेरे फादर के रेफरेंस में वो सीएस हैं एंड वो भी मेरे पेरेंट जैसे हैं, तो उन्होंने हेल्पफुल नेचर में आकर के एक अग्रवाल सीएस कंपनी सेक्रेटरीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्म उनका रजिस्टर है गोरखपुर में, वो हमारी कंपनी का पूरा देखने लगे। तो उसमें क्या है कि जो फी वगैरह पे करना होता है तो पूरा ब्रेकअप मुझे दिखा दिए, तो एक बेनिफिट मुझे मिल गया। एंड अगर आप ओपीसी कंपनी रजिस्टर करते हैं ऑनलाइन कंपनीज के ही जरिए, लाइक कई सारी कंपनी है, वकील सर्च हो गई या फिर एक इंडिया फाइलिंग्स करके कंपनी है, कई सारी कंपनीज है जो ऑनलाइन प्रोवाइड कर रही है कंपनी रजिस्ट्रेशन, और वो भी सीएस आपको प्रोवाइड करते हैं, बट उनसे आपको बार्गेनिंग करना पड़ेगा। और पूरे ईयर ऑपरेटिंग कास्ट आपका 25,000 के अबव नहीं जाएगा। अगर आप प्रॉफिट नहीं गेन कर रहे हैं तो आपको गवर्नमेंट को कोई टैक्स नहीं देना है। एंड कंपनी जो प्रॉफिट भी अर्न करती है वो सारी सैलरी वगैरह पे करने के बाद जो सेल परचेज है, जो रेस्ट ऑफ अमाउंट बचता है वही आपका इनकम होता है। तो वो काफी बिग अमाउंट नहीं है। 25,000 में आपको मल्टीपल बेनिफिट मिल जाएंगे, लाइक रिकॉग्निशन, आईएसओ सर्टिफिकेशन, ये सारी चीजों के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं और एक ट्रस्ट भी गेन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज कई लोगों को रोकती है कंपनी रजिस्ट्रेशन कराने से कि काफी ज्यादा कॉस्ट आएंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो गवर्नमेंट फीस है वो 7 to 8,000 10,000 के ऊपर नहीं है, बाकी आप सीएस को जितना दे पाए। और जब आपकी कंपनी में सेल परचेजेज कम है, लाइक मेरी कंपनी में जो टर्नओवर गया है वो काफी कम है, एंड सेल परचेज अभी हम लोग चूंकि वर्क कर रहे हैं सर्विस को और बढ़िया बनाने के लिए और बढ़िया तरीके से प्रोवाइड करने के लिए, तो सेल परचेज हमारी कंपनी में कम है, तो सीएस को वर्क भी काफी कम करना पड़ेगा जो हमारे कंपनी सेक्रेटरी होंगे। एक्चुअली क्या है कि अब आपकी कंपनी में 1000 ऑफ ट्रांजेक्शन है पर मंथ, तो उनको काफी उस पर वर्क करना पड़ता है कि ये ट्रांजेक्शन क्यों आया, ये कहाँ गया, आपने कितने शेयर्स खरीदे। लाइक अगर आप सपोज रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करें तो स्टॉक्स में भी डील करते हैं, लैंड्स में डील करते हैं, तो उनके जो सीएस के वर्क है वो काफी हैवी हैं, उनको एक पूरे फर्म की आवश्यकता है, तो उनका पेमेंट अधिक होगा। हम जैसे छोटे फर्म से हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे ट्रांजेक्शन काफी कम है, तो सीएस को काम भी काफी कम करना पड़ता है, उनको सर्विस चार्ज भी आप काफी कम देंगे तब भी चलेगा। ऐसे सीएस फर्म जो है छोटे बिजनेसेस के लिए एक साथ 100 बिजनेसेस 100 बिजनेस के साथ काम करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको भी इनकम कम पड़ती है। पूरे ईयर तक मेरा जो है 18,000 के अप्रॉक्स लगा है चार्ज।
हाँ जी मनीष जी, हाँ एक्चुअली हमारे यहाँ स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा हो जाती है मध्य प्रदेश में, तो इसलिए ओके। थोड़ा अमाउंट बढ़ जाता है। क्या एक क्वेश्चन सर मैं और पूछ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल पूछो। हाँ, एक और क्वेश्चन मनीष सर ये था कि उनका ये भी कहना था कि अगर आप स्टार्टअप इंडिया से रिकॉग्निशन लेते हो, क्योंकि वही एक बॉडी है जो हमें रिकॉग्नाइज कर पाए, मतलब फंडिंग और इंक्यूबेशन में सपोर्ट कर पाएगी, तो उनका ये भी कहना था कि पहले आप इसको और इस्टेब्लिश कर लीजिए, क्योंकि अगर स्टार्टअप इंडिया से आपको कुछ अपॉर्चुनिटी चाहिए तो फिर 2 साल पुराना ही कंपनी होना चाहिए, और पुराना हुआ तो फिर हमें ज्यादा नहीं मिलता है। अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो इस वजह से भी मैं पहला क्वेश्चन पूछा था, और ये सेकंड क्वेश्चन उसी के ऊपर बहस है कि क्या थोड़ा रुक करके जब हम और फॉर्मेशन की तरफ आ जाएं तब नई कंपनी के लिए रिकॉग्निशन लेना चाहिए? एक तरह से सही होता है कि अगर हम अपने आप को प्रोडक्ट को प्रूफ कर दें, जैसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मेरा रेडी हो जाए एंड सच में वो मार्केट में फिजिबल प्लान हो, उसको हम अगर एक बार टेस्ट कर लें, उसके बाद हम कंपनी रजिस्ट्रेशन कराएं एंड फंडिंग के लिए जाएं, तो काफ़ी बेहतर है। वैसे 2 इयर्स काफ़ी लेंदी टाइम है। मैं जनवरी से ही जनवरी जून मंथ में मेरा इंक्यूबेशन हो गया था, एंड बट ये है कि इंक्यूबेशन का जो इंटरनल प्रोसेस है वो थोड़ा लेंदी है। थैंक यू मनीष। ओके। यस, और कोई किसी का सवाल? मैम मोमिता मैम कुछ कह रही हैं। जी हाँ मैम। मनीष, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था आपका, थैंक यू बहुत मैम। ही इंफॉर्मेटिव था और सिंपल वे में आपने सबको समझाया है, तो कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू। मैं एक पूछना चाहती थी सवाल। अभी आपने इंक्यूबेशन की बात बताई कि आपका इंक्यूबेशन आपका कंपनी का हुआ था, तो एकदम ब्रीफली बता पाएंगे कि कैसे शुरुआत हुई और आपको क्या क्या वहाँ एक्सपीरियंस हुआ, मे बी 5 मिनट्स में? थैंक यू। मैम एक्चुअल में जब स्टार्टअप इंडिया रिकग्निशन हमें मिला, तो सीड फंड इंडिया में हम अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो स्टार्टअप इंडिया क्रेडेंशियल को ही लेके, वहाँ का यूजर नेम पासवर्ड लेके हम सीड फंड इंडिया की वेबसाइट पे गए, एंड वहाँ पे हमने एक न्यू एप्लीकेशन स्टार्ट किया, और वहाँ पे हमने अपने स्टार्टअप का पिच डेक अपलोड किया, एंड जो भी इंफॉर्मेशन हमसे पूछी जाती है लाइक प्रॉब्लम स्टेटमेंट सोल्यूशन वगैरह, तो इसको पुट करने के बाद हम स्टार्टअप एप्लीकेशन के आगे गए, तो कई सारे इंक्यूबेशन सेंटर जो कि हमारे स्टार्टअप के रिलेटेड कैटेगरी में और उस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, उनकी एक लिस्ट हमारे सामने आती है। तो वहाँ पे मैंने चूज करा 3 इंक्यूबेशन सेंटर को, एंड उन्होंने फिर स्क्रीनिंग सेशन रखा। उसमें से 2 इंक्यूबेशन सेंटर ने हमें ईमेल किया कि आपका स्क्रीनिंग सेशन है। लाइक कृष्णा एजुकेशन फाउंडेशन गुजरात में एक इंक्यूबेशन सेंटर है, उन्होंने स्क्रीनिंग सेशन रखा था, जहाँ पे वो गूगल मीट के जरिए ओवरव्यू लिए मेरे स्टार्टअप का, और उन्होंने मेरे इंक्यूबेशन को रिजेक्ट कर दिया। लाइक उन्होंने उसमें डाला था कि ये ट्रेडिशनल बिजनेस को प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन सेम वे IIM काशीपुर ने भी मेल किया था, बट उनकी स्क्रीनिंग को मैंने पास कर दिया, और वहाँ से मैं इंक्यूबेट हो गया। एंड तब से अभी तक उन्होंने कंपनी के कुछ बैलेंस शीट वगैरह मंगाए हैं, कुछ हमसे लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंपनी के जो हैं इंटरनल, वो उन्होंने हमसे पूछा है और हमने उनको दिया है। अब बाकी वो प्रोसेस में है, एंड वो बोल रहे हैं कि 5 दिसंबर को वो रिकमेंड कर देंगे हमको सीड फंड स्कीम के अंतर्गत बेनिफिट के लिए। एंड एक्चुअली मेरा जो सर्विस सेक्टर है, और मैं अपने इसमें वर्क भी कर रहा हूँ, कुछ कंपनी ने प्रॉफिट भी गेन किया है पिछले बैलेंस शीट में, तो मैं जो है ग्रांट के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। तो वो मुझे कह रहे हैं कि एक लोन जो है, लोन और उस पर सब्सिडी वगैरह हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें हम ग्रो कर पाए। तो इसमें है मैम। अच्छा, तो उसमें जो IIM कोड है वो आपके साथ में आपका कंपनी के जो डेटा है उसके अलावा कुछ और तरह के मेंटरिंग भी प्रोवाइड करी है, या इस तरह का है एक्चुअली फीचर्स? मैम डिफाइन तो लोग करते हैं कि कई सारी मेंटरिंग वो प्रोवाइड करेंगे, बट आई थिंक ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ फंडिंग तक ही इस चीज़ को लिमिटेड रख रहे हैं मेरे लिए। अच्छा। मैं और कोई स्टार्टअप कर रहा हो, उनको सच में मेंटरशिप की आवश्यकता हो, तो दे रहे हो। हमें तो अपने मतलब मेरी कंपनी में सारी मेंटरशिप तो हमें NCID से ही मिली है। अच्छा, और जो सीड फंडिंग वाली बात है, तो वो क्या उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी है क्या, टर्म्स एंड जैसे कंडीशन में मैम शेयर्स या कुछ इस तरह का? उन्हें आपका जो बिजनेस प्लान है या फिर स्टार्टअप का जो पिच डेक है, उन्हें फिजिबल लगना चाहिए। ये टोटली उनके ऊपर डिपेंड है कि वो रेकमेंड कर रहे हैं या नहीं। ऑन टर्म्स अच्छा। कंडीशन में है कि कंपनी 2 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए, एंड अर्निंग जो है आपका 100 करोड़ के ऊपर नहीं होना चाहिए।
अच्छा, तो उसके बाद जब वो सीड फंडिंग आपको करेंगे तो उसके जो अमाउंट देंगे उसके एवज में कुछ आपको देना पड़ेगा या कैसे? जो मैम जो ग्रांट होता है, जो ग्रांट हमें गवर्नमेंट देती है 20 लाख रुपीस तक, वो तो हमें वापस नहीं करना होता है। ठीक है। हाँ, उससे क्या होता है कि बट ये है कि उन्हें एक रिपोर्ट हमें प्रॉपर सबमिट करनी पड़ेगी एंड गूगल मीट के थ्रू उन्हें बताना पड़ता है टाइम टू टाइम कि हम उस फंड का कहाँ यूटिलाइज किए हैं, कितना मार्केटिंग में है, कितना गया, उसका रिस्पॉन्स क्या आया। तो ये सारी चीज़ें उन्हें बतानी पड़ती हैं, तो वो रिपोर्ट जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। एंड जो लोन है उस पर 4.5 से 6.5%, जो कि इन्फ्लेशन के ही मतलब इक्वल है, उतना हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, ये काफी इम्पोर्टेंट जानकारी है, तो थैंक यू मनीष फॉर बहुत क्लियरली आपने सबको जवाब दिया। मनीष, ये बताओ कि वो जो सीड फंडिंग के लिए वो रिकमेंड करेंगे, तो फंडिंग आपको कहीं और किसी एजेंसी से मिलेगी जी, या वही इंक्यूबेटर देगा? फंड्स हाँ, फंड्स के लिए सर वो लोग किसी बैंक को दे सकते हैं, लाइक बैंक को उसका टर्म कंडीशन दे देंगे, एंड जहाँ पे मेरा बैंक का करंट अकाउंट है वो उन्हें दे सकते हैं, या फिर डायरेक्टली भी हमारे करंट अकाउंट में भिजवा सकते हैं, फिर किसी मैं एनबीएफसी से अलॉट जानना कर चाहता सकते हूँ, हैं। जैसे जैसे तुमने कहा कि वो सीड फंडिंग के लिए रिकमेंड करेंगे, जी, रिकमेंड करने का मतलब है रिकमेंड करने के बाद में जो पैसा वो इंक्यूबेटर ही रिलीज करेगा, तो इंक्यूबेटर कहीं और किसी एजेंसी नहीं से सर, होगा? इंक्यूबेटर ही रिलीज करेंगे, इंक्यूबेटर उसके बाद के भी फंड? डिसीजन उन्हीं को आएगा। जी, ठीक है, दैट्स फाइन। और हम ये उम्मीद करते हैं कि यू विल गेट दैट फंडिंग, तो थैंक यू यू हैव सर। दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल, और अब आपके पास में वो एक्सपर्टाइज स्किल आ चुकी है कि आप अपने आप को अच्छी तरीके से पिच कर सको, और जी, विश यू ऑल द बेस्ट। एक चीज, तपन जी, जब बात कर रहे हैं उससे पहले मैं ही कह रहा हूँ कि मनीष से आपने जब हम काम करते हैं, आप जो काम कर रहे हो, आपने तो एकदम से बहुत जीरो लेवल से ही शुरू करके यू हैव कम अप टू दिस लेवल। तो जो हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो आपके साथी भी बन गए बहुत सारे, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से जुड़े हुए हैं, मैं कहता हूं कि आप उनकी एक कंसल्टेंसी क्यों नहीं शुरू करते हो उनकी, मतलब वॉलंटरी कंसल्टेंसी होगी तो मुझे तो खुशी होगी, उनको भी खुशी होगी। अगर वॉलंटरी नहीं है, अगर कुछ थोड़ी बहुत वो लेकर के, फीस भी लेकर के, क्योंकि दी वे यू हैव गॉन थ्रू, वो सारे अपने रास्ता देखा हुआ है, और उस रास्ते पे उनको चलाना है। कहाँ पे किस दुकान से क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना है, वो आपको पता है। कौन सी दुकान वहाँ अच्छी है, कौन सा सीए ठीक है, किससे वेबसाइट बनवानी है, नहीं बनवानी है। तो इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ नेटवर्क एंड कनेक्शन नाउ इन दिस जर्नी, तो उन कनेक्शंस का और उस रास्ते का फायदा क्या बाकी स्टूडेंट्स को मिल सकता है आपकी का? बिल्कुल सर, मैं तो उसकी आपकी रेडी हूँ क्या सर। कंडीशन होगी, बताओ मुझे। अगर मैं कहूँ, सपोज करो तपनजीत की तरफ से मैं कहता हूँ कि तपनजीत का आप रास्ता बताइए, कि बिकॉज आपको ये भी पता है कि तपनजीत कहाँ किस स्टेज पे है अभी, ठीक है, ये आपको, क्योंकि यू नो वेरी वेल। अब जी, तपनजीत को आगे इस डायरेक्शन में कब क्या करना चाहिए, कैन यू गाइड हिम, कैन यू बी ए मेंटर फॉर हिम? श्योर सर, अगर मैं उसके एलिजिबल हूँ तो एलिजिबल तो बिल्कुल देखिए, सर। अभी आज अपना एक्सपीरियंस बता रहे हो, सब लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे भी अच्छा लग रहा है। ममता मैडम ने कहा कि एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन, मैंने भी ऐसे ही थोड़ी कह दिया। जो भाषा, जिस भाषा में जिस तरीके से आपने समझाया है, उससे ज्यादा तो हम तो नहीं समझा सकते थे। आपने तो वो एक्सपीरियंस बेस्ड किया है, सारी चीजें अनुभव की हैं, देन यू हैव शेयर दोज एक्सपीरियंस। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कैन यू डू दैट काइंड ऑफ हैंड होल्डिंग और मेंटरशिप, कि एक तपनजीत को हाथ पकड़ के साथ चलना है ना, बस चल तो जी, आप रहे, चल वो भी रहे, बस हाथ पकड़ना है ताकि वो इधर उधर ना जाए। दैट काइंड ऑफ थिंग आई एम प्रपोजिंग। तो क्या आप, मतलब एक तो तपनजीत का है, मैंने एग्जांपल लिया, मतलब ऐसे ही और भी कोई यहाँ से तैयार हो, क्योंकि चलना उन्हीं को है, यू नो। बस जरूर, हम भी तो वही काम कर रहे हैं। हमने क्या किया आपके साथ में, कुछ ज्यादा नहीं किया, बस आपके साथ मिलते रहे, आपको बताते रहे कि ऐसे करिए, ये मत करिए। एंड नाउ बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू दैट पाथ, तो ये हम, मेरे दिमाग में एकदम से आइडिया आ रहा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये जिनके दिमाग में ये सारे आइडियाज आ रहे हैं या अपने इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, ले लिए हैं इन्होंने, तो दे शुड कम टू ए सर्टेन लेवल के, वहां पे आने के बाद में फिर उनको फ्री छोड़ दो, जो करना है करो, अपने आप आपस में बात करो ना करो एक अलग चीज है, लेकिन एटलीस्ट एक लेवल तक आने के बाद में दे कैन डू एट देयर ओन। तो वो लाइक मैं सर, एक
एक मेंटरशिप जो कि आइडिया टू स्टार्टअप का एक तरह से आप कह रहे हैं, बिल्कुल। वहां तक ले जाने के लिए। हाँ, क्योंकि हम मेंटर से हम तो देखो कर रहे हैं, हम एक तरीके की कर रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि अब आप लोग जो ग्रो कर रहे हो धीरे धीरे करके, तो वो साथ साथ एक दूसरे का हाथ पकड़ के भी चलेंगे, तो वो एक अच्छा मेरे ख्याल से आउटकम ओरिएंटेड एक स्टेप रहेगा। इसलिए जी मेरा सर। आज प्रपोजल ये है, बाकी अभी डिस्कशन जो करते हैं हम, कि आप एक या दो का हाथ पकड़ लीजिए, आज के ग्रुप में से ही पकड़ो, जी ठीक है, और कौन कौन पकड़वाना चाहता है वो अब बता देंगे। अब आगे की बात चलते हैं। तपनजीत का कुछ सवाल है और फिर उसके बाद सोनकर ये कुछ कहना चाहते हैं। यस, तपनजीत बोलिए, क्या कहना है आपको? सबसे पहले तो सर आपका प्रपोजल बहुत ही सही है। मैं मनीष से बात भी कर रहा था इस बारे में, कुछ 7-8 दिन पहले हमारी बात भी हो रही थी। चंद्रशेखर भैया से भी इसी से रिलेटेड बात हुई थी जब हमारा सेशन हुआ था। तो सर पहला तो मैं एग्री हूँ, जो आपने कहा कि कौन कौन इनके साथ जाना, मैं इस पर काफी एग्री हूँ। सेकेंडली मनीष भाई, मेरा क्वेश्चन एक ये था कि जो आपने सीड फंडिंग की बताई, तो आपने बताया कि मैंने एक प्रॉफिट गेन की कुछ अमाउंट ऑफ, उसके बाद मैं ग्रांट के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। तो ग्रांट के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, क्यों? ऐसा क्या रीजन था, आप बता सकते हैं? जिसे जो ग्रांट होता है उसको हमें गवर्नमेंट को वापस भी नहीं करना होता है, गवर्नमेंट वो हमें सिर्फ इसीलिए देती है कि हम अपना प्रोटोटाइप डेवलपमेंट कर पाएं और उसको मार्केट में टेस्ट कर पाएं, सिर्फ इसके लिए होता है। बट जो मेरी कंपनी की सर्विसेज हैं, जो हम लोग क्लाउड सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वेबसाइट डिजाइन की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो एग्जिस्टेंस में आ चुकी हैं और उससे हम लोग प्रॉफिट भी गेन कर चुके हैं। लाइक आपकी कंपनी में प्रॉफिट आने का मतलब है कि आपका प्रोडक्ट मार्केट में वर्क कर रहा है। तो उस स्टेज पे आप आइडिएशन की स्टेज पे नहीं रह गए हैं, आप प्रॉफिट मेकिंग स्टेज पे आ गए हैं, आपका स्टेज इंप्रूव हो गया है, तो वहां पे आप ग्रांट आपको नहीं मिलेगा। बट ऐसा कोई नेसेसरी नहीं कि हम गवर्नमेंट को बता भी दें, बट आप कंपनी रजिस्टर करा रहे हैं तो उसके बाद आप कंपनी में प्रॉफिट नहीं आना चाहिए, अगर लीगल टर्म में देखा जाए तो। ओके, थैंक यू सो मच। तो मनीष भाई, जब हम कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो वहां हमें ये दिखाना पड़ता है कि हमारा वैलिडेशन पे है कि लाइक आइडिएशन। हाँ, उन्हें पता लग जाएगा, क्योंकि आप कंपनी जब रजिस्टर करा रहे हो ना, तो आप एक एक डाटा जो है थ्रू योर सीएस, आपकी कंपनी सेक्रेटरी के थ्रू गवर्नमेंट तक जा रहा है। लाइक आप ईयरली बैलेंस शीट को गवर्नमेंट को दोगे तो गवर्नमेंट वहां पे ऑटोमेटिकली आपके बैलेंस शीट में क्लियरली मेंशन है कि आपने कितना प्रॉफिट गेन किया है, फिर आपकी कंपनी घाटे में चल रही है, या फिर आप अभी डेवलपमेंट फेज में है, तो उसके थ्रू उन्हें पता लग चुका है। ओके, थैंक यू सो मच मनीष भाई। ओके, सुनाकर जी। हेलो। हाँ, हेलो सर। यस, सोनकर बोलिए, व्हाट यू वांट टू से। फॉर असिस्टेंस एंड गाइडेंस। आपकी वॉइस क्लियर नहीं है सर। आप लिख के बता दीजिए। ओके ओके, आई जस्ट टाइप इट सर। यस, और किसी का कोई सवाल है? अलका शर्मा ने भी हैंड रेस किया था, सो शी मे बी आस्क्ड टू कम फॉरवर्ड। Hello, good morning, sir. Maybe it is disturbing that film was discussed, but yes, I'm so happy to see many wonderful outputs. And Sorry, Alka, we are not getting anything you are saying. The background music is too much. आप टाइप कर दीजिए। sure, definitely. मनीष, अभी डिस्कशन हो ही रहा है, तो एक ऐसा मुद्दा है जिसमें मुझे तुम्हारी राय की जरूरत थी। जी मैम। हाँ, तो हम लोग एक यूनिवर्सिटी में एक है इनोवेशन एंड स्टार्टअप पॉलिसी, ठीक है। तो इसमें स्टूडेंट्स के लिए तो है ही पॉलिसी लेवल पे क्या हम हेल्प कर सकते हैं या मेंटरिंग या हेल्प कर सकते हैं। उसके साथ ये एक और पॉलिसी है जिसमें फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो स्टूडेंट्स के साथ मिलकर के स्टार्टअप खोल सकते हैं, ठीक है। ये आईआईटी के तर्ज पे ही समझ लो बना हुआ है, जहाँ पे वहाँ के प्रोफेसर्स भी अपने स्टूडेंट्स के साथ में
करके स्टार्टअप्स खुल रहे हैं, सो आई वांट टू नो योर व्यूज अबाउट इट, क्या आपको लगता है? मैम एक तरह से बेहतर भी हो सकता है, लाइक जो मैं थोड़ा फाइनेंशियली जो है अनस्टेबल हो गया था बीच में, क्योंकि मेरे ऊपर कोई रेगुलर मेंटरशिप मेरे साथ कोई ऐसा नहीं था जो मुझे प्रॉपर गाइडेंस दे पाए डे टू डे बेसिस पे। तो फाइनेंशियली अनस्टेबिलिटी भी मेरे पास मुझे देखने को मिली है, और काफ़ी स्ट्रेस लेवल भी उसमें आ गया था मेरे साथ, तो उससे ओवरकम करने में मुझे टाइम लग गया। तो एक तरह से एक बेहतर हो सकता है कि एज अ पेरेंट कोई हो, हाँ, तो एक बेहतर तरीका हो सकता है मैम। ठीक है, थैंक यू। Yes, any other comment or suggestion? ओके, अलका मैम, आई विल ट्राई माई बेस्ट, अगर मैं कुछ कर पाया आपके लिए तो। मनीष, देखिए मेरा जो अभी प्रपोजल जो है, क्योंकि अभी हमने देखे हैं कि हमारे जो बेस्ट स्टार्टअप अवार्ड्स आए हैं, और कुछ जो और इस समय जिन्होंने अच्छे तरीके से इनिशिएटिव ले लिया है, मैं चाह रहा हूं कि सब एक एक जो बडिंग स्टार्टअप्स को, जो या जिनको एकदम से कुछ भी पता नहीं है, उनकी हैंड होल्डिंग आप लोग करें, साथ में हाथ पकड़ के चलेंगे तो आई थिंक एक दूसरे को फायदा मिलेगा कई मायनों में। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए कोई किसी को, जैसे अभी अजय के बारे में था, अजय के प्रॉब्लम सीए से रिलेटेड या उनकी कहीं किस तरीके की क्या है, और वो अगर आपका कोई नोन पर्सन है और थोड़ा जिसके ऊपर भरोसा किया जा सकता है, दैट काइंड ऑफ पर्सन इज देयर, और उसकी सपोर्ट अगर अजय चौबे को मिल जाती है थ्रू योर, तो आई थिंक दैट वी शुड फैसिलिटेट ईच अदर। क्योंकि अगर नए आदमी को लेंगे, नया आदमी कितना चार्ज कर रहा है, कैसे कर रहा है, कितना रिलायबल है, नहीं है, क्योंकि आजकल तो टेक्नोलॉजी है, कहीं पे बैठा हुआ, कहीं भी, जैसे ऑनलाइन फॉर्म है, ऑनलाइन फॉर्म तो यही कर रही है, कौन कहाँ बैठा हुआ है, बट स्टिल दे आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट। ऐसे ही अगर आपकी नॉलेज में कोई एक अच्छा वेबसाइट बनाने वाला है और वो अच्छी वेबसाइट कम पैसे में बना देता है, तो सपोज करो जरूरत है हमारे तपनजीत को बनाने के लिए या अलका शर्मा को बनाने के लिए, तो बजाय कि वो किसी के पास जाएं, मार्केट में सर्च करें और वो किस तरीके से उनके साथ में चीट करेगा, किस तरीके से उनको प्रोडक्ट देगा, दैट विल बी देयर फर्स्ट एक्सपीरियंस ओनली। उसके बाद ही पता चलेगा वो अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। बट व्हेन दे आर इंटरेक्टिंग विद यू और एनी अदर पर्सन जिसने वो काम किया हुआ है, और आपको पता है कि दिस पर्सन इज रिलायबल, कॉस्ट इफेक्टिव है, कम पैसे में एक अच्छी वेबसाइट बना सकता है, और अगर जरूरत है किसी को इस ग्रुप में या अदरवाइज ऑल्सो, देन आई थिंक वी शुड कम फॉरवर्ड। तो आपके केस में भी मैं ये कहूँगा, बिकॉज यू आर इन दैट ग्रुप, तो आप ग्रुप में ओपनली लिखिए, दिस इज अ काइंड ऑफ ऑफर फ्रॉम माय साइड, and we will give you official letter also that I assure you that you are mentoring so and so. Officially I'll give you certificate and letter also. अपने ग्रुप के इग्नो के स्टूडेंट को, एलुमनी को आप मेंटर कर रहे हैं, एक बात। दूसरी बात, बाकी चीजों में जो फैसिलिटेट करते हैं कि कहीं मान लो किसी को वेबसाइट बनवानी है, क्योंकि आज की वेबसाइट की सर्विस हमारी कंपनी का एक कहिए तो यूएसपी है। हम लोग लो कॉस्ट में हमारी कंपनी वेबसाइट। ये बताओ मुझे मनीष, तुम दुनिया भर में पब्लिसिटी कर रहे हो, एडवर्टाइज कर रहे हो, और अपने जो तुम्हारे ग्रुप के जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, फेलो तुम्हारे हैं, उनके साथ में उनकी बात नहीं कर रहे हो, उस यूएसपी को बता नहीं रहे हो। व्हाई डोंट यू राइट दैट माय कंपनी हैज दिस काइंड ऑफ एक्सपर्टाइज, किसी को वेबसाइट बनवानी है, स्टैटिक, डायनामिक, ये तो मैं बनाऊंगा, और पब्लिसाइज करो अपनी। हम मतलब we are ready to promote you. Dr. Sharma, I have a suggestion. We can have a students corner in any of the websites, whether it is IGNOU, Udyami or PFU,
where students who have their companies or enterprises can put up notices regarding small brief notices, and we can put it up on our website for their जी benefit, बिल्कुल, so that that we a will do. network is created and they can have business or commercial linkages amongst themselves also. This will be a different kind of network that we are creating, and Sure, sure. I would like to take comments from my colleague Dr. Jyotsna also on this aspect. Yes, yes. Yeah, this is a good suggestion. And we already have our virtual incubator and IGNOU in place. So maybe, after taking approval from the competent authority, we could give this kind of a corner to our students, and they can have their, like, they can update on their own, and we can from NCID just monitor what is going on. And so they could be benefited, and few students are already sending email to us that, like, we have highlighted a few startups in our startup initiative page, so they want that their startups or their innovation could be highlighted on these kind of portals, so that they also get the benefit of marketing in a way. So certainly, Dr. Swati, it's a wonderful idea, and in a way, we can, apart from the WhatsApp kind of a network or thing, we can create this kind of a network also. Yes, It we can be should. called IGNOU. It can be called IGNOU Entrepreneurs Corner or some other name, and it can be the aim should be networking among the IGNOU innovators and entrepreneurs. Yeah, so like we have this, our IGNOU Udemy portal is already there. So it Market. defines that entrepreneur kind of a, it gives you that feeling. And so there we can have a corner specifically dedicated for this kind of purposes. And we can have dedicated Google sites also, where the rights are given to them. We also have the right, and they can upload and things like that. But this all can be done after proper procedures, and some kind of Yes, that we will discuss, what and kind then of we will. content is to be uploaded and things like that. Yes, yes. We will discuss it in house, and then we'll decide. But time, Manish, I'll suggest you, before I take questions from others, you write what kind of services. You categorize those in two categories. One, voluntarily, how you will be helping. Okay. Secondly, paid, subsidized paid. वो मार्केट वाला नहीं, नहीं सर, मार्केट अभी विनोद ने कहा है कि ही वांट्स वेबसाइट अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, वेबसाइट के साथ उनको अपने एक ऐप की भी जरूरत पड़ेगी. हाउ यू कैन हेल्प विनोद, क्योंकि आपको भी तो देखिए, एक हो गया आपको कस्टमर चाहिए, इन ए वे दीज आर आल्सो कस्टमर बट डिफरेंट काइंड ऑफ अ यूनिक कस्टमर, क्योंकि इनको हैंड होल्डिंग भी करनी है और आपका पब्लिसिटी भी होगी. क्योंकि अगर विनोद कुमार का वेबसाइट बनती है और वहां पे ये आता है कि दिस हैज बीन डेवलप्ड एंड मैनेज्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन, योर कंपनी, तो योर पब्लिसिटी इज आल्सो देयर. और उस चीज को प्रमोट करने में वी डोंट हैव एनी हेजिटेशन, बिकॉज वी कैन प्रमोट योर वर्क एज आवर स्टूडेंट स्टार्टअप. ओके, हम अभी जितने स्टार्टअप फेस्ट या जितने भी इवेंट हम कर रहे हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दोस? टू प्रमोट यू, टू पब्लिसाइज योर वर्क, टू शोकेस योर वर्क. और वो जो काम आप कर रहे हैं उसको आप बता नहीं रहे हैं तो कैसे काम चलेगा? उसको अभी आज ही आफ्टर दिस मीटिंग यू राइट इन द ग्रुप व्हाट काइंड ऑफ सर्विसेज यू विल बी ऑफरिंग, जो आपको पता है कि इन स्टूडेंट्स के लिए किस किस तरीके की जरूरत होगी एज पर योर एक्सपर्टाइज एंड दैट यूएसपी, you write that. And secondly, hand holding के लिए वो हम बात करते हैं आपके साथ में separately. So in the meantime, CA Sanchal Kumar. Yeah sir, and Sonkar, CA Sanchal. Yes, Sanchal, you kindly you want to say something? अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो वी आर नॉट एबल टू लिसन यू. तो सोनकर आप बोलिए. यस सर, संचल. Yes, thank you sir, thank you for giving me an opportunity. आप अपना मोबाइल भी ऑन करिए, कैमरा भी ऑन कर लीजिए. Okay, just a second. little bit issues are there in network, so that's why. ठीक है. Yes, continue please.
So from last 4 years, I was trying to do agriculture-based startup, but due to manpower shortage and due to not able to hold my hand, so basically मुझे कोई हैंड होल्डिंग का चाहिए कि जो मेरा हैंड होल्ड कर सके और मैं अपने आइडिया को एक्सटेंड कर सकूं. सो मनीष का मुझे हेल्प चाहिए इस पॉइंट को लेकर के कि मुझे कुछ नेटवर्क्स मिल जाए जो मुझे जो आइडियाज हैं उसको एग्जीक्यूट कर सके. एज आई एम ऑलरेडी चार्टर अकाउंटेंट, सो टेक्निकल पार्ट से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, बट जो एग्जीक्यूशन पार्ट है, टेक्निकल पार्ट एग्रीकल्चर स्पेसिफिक, सो उसमें मुझे प्रॉब्लम आती है. तो कुछ कैसे मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ मनीष को इस पॉइंट को लेकर के? सर मैंने अपना मोबाइल नंबर ड्रॉप कर दिया है मैसेज में, और विनोद सर ने भी आस्क किया है उसके लिए. संचल, एक तो हम आपको जो हमारे ग्रुप है उसमें ऐड कर लेंगे, और एक चीज यह है कि बिकॉज यू आर सीए एंड मेनी ऑफ दीज स्टार्टअप दे रिक्वायर सर्विसेज ऑफ सीए. राइट. तो आपको भी उनकी हैंड होल्डिंग करनी होगी. बिल्कुल, डेफिनेटली आई एम ओके विद इट. क्योंकि देखिए यही एक म्यूचुअल वो होता है कि हम एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे, देन आई थिंक वी कैन मूव फर्दर एंड बेटर इन. वही मैं अभी उनसे बात कर रहा था मनीष से, वही कह रहा हूँ कि आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, और हम जो कर सकते हैं दैट वी आर डूइंग, बट आई थिंक दैट इज नॉट सफिशिएंट, क्योंकि एवरी टाइम वी कैन नॉट गाइड यू और वी कैन नॉट स्पून फीड यू ऑल. वहाँ कहीं ना कहीं आपस में बात करके और एक दूसरे को बिल्कुल फ्रेंकली आप करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब आप काम कर रहे हैं एक प्रॉफिट मेकिंग कहीं और होती है, लेकिन कई बार इस तरीके की जो सर्विसेज होती हैं एक दूसरे के साथ मिलकर चलने की होती हैं, वी कैन नॉट लुक फॉर द प्रॉफिट्स इन दैट. वहाँ हमें प्रॉफिट नहीं भी हो रहा है, सेम थिंग इज विद यू. फॉर एग्जांपल आपको प्रॉफिट के लिए बहुत मार्केट में मिलेगा, जब अपने कुलीग्स के साथ में, अपने फेलो स्टूडेंट्स के साथ में जब जा रहे हैं और आपको भी उसी रास्ते पे चलना है, तो वहाँ प्रॉफिट नहीं देखा जाता है. वहाँ पे क्या है कि साथ साथ चलना है. तो आई थिंक वी कैन अचीव मच मोर. आपके लिए मनीष इज देयर, अजय चौबे इज देयर. अजय चौबे हैज अ गुड एक्सपर्टाइज इन मैनी फील्ड. ही कैन गाइड यू, ही कैन आल्सो बी अ गुड हैंड होल्डिंग पर्सन, मेंटर. उनको किसी मामले में मनीष की जरूरत है, बट उनकी किसी और को भी जरूरत हो सकती है, बिकॉज ही हैज डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपर्टाइज दिस आई, बिकॉज वी हैव बीन इंटरेक्टिंग विद दीज ऑल. और आपके साथ में आज पता चला कि यू आर चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आपकी एक अलग एक्सपर्टाइज होगी, आपको उस फील्ड में काम करना है. तो अगर आप अजय चौबे के साथ में बात करते हैं तो ही विल आल्सो गाइड यू हाउ टू गो फॉर एन स्टार्टअप. मनीष के साथ में भी करिए, क्योंकि मनीष को भी कई बार क्या होगा कि अगर ओवरलोडेड हो गए तो मनीष तो वो भी मुश्किल हो जाएगा. तो मैंने तो हम नहीं असाइन करेंगे. ठीक है, आप अपना करिए. वेयर डू यू स्टे संचल? आई एम इन पटना. पटना में प्रैक्टिस करते हैं सीए की या कुछ और करते हैं? मैं पीडब्ल्यूसी में एम्प्लॉयड हूँ एंड पार्ट टाइम कंसल्टेंसी करता हूँ. तो बढ़िया है, पार्ट टाइम कंसल्टेंसी करते हैं, साथ में स्टार्टअप का ये एक्सपीरियंस लीजिए, अपने आइडियाज को डिस्कस हमारे साथ में भी करिए. व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू वांट टू डू? आई थिंक यू हैव जॉइंड फर्स्ट टाइम इन दिस सेशन और अर्लियर आल्सो. No, this is first time. Last time I missed it. ये सेशन हम बहुत रेगुलर करते हैं. पेटेंट फैसिलिटेशन यूनिट का होता है, अदरवाइज भी बहुत सारी हमारी अलग अलग इवेंट्स करते रहते हैं जिसमें हम स्टूडेंट्स को बुलाते हैं. और अभी हमने एक रिसेंटली टेलीविजन पे एक ज्ञान दर्शन पे एक सीरीज शुरू की है, दैट इज अ फोर्टनाइटली उद्यमिता की ओर. उद्यमिता की ओर उसका पर्पज ही ये है टू एनकरेज यू ऑल यू गाइड यू ऑल टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप. आपके और वो थोड़ा स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि उसमें हम एक बार में एक ही टॉपिक या एक ही एरिया के बारे में बात करते हैं. जैसे हमने एक बार बात की बायोटेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, बायोसाइंसेस. दूसरा अब हमने किया क्या था सुजाता पिछली बार का, दैट वाज आई थिंक फूड था, नहीं दैट वाज समथिंग फूड रिलेटेड. यस सर, पोल्ट्री फार्मिंग में क्या ऐसी अभी आने वाला है, वो एक एनवायरमेंट वेस्ट मैनेजमेंट के हैं, फिर उसके बाद प्रोसेसिंग का है. तो दिस वेरी फोकस्ड सेशंस आल्सो वी आर कंडक्टिंग ऑन दिस. तो अभी खैर वो तो डिटेल सेपरेट है, बट दिस काइंड ऑफ हैंड होल्डिंग एंड म्यूचुअल मेंटरशिप इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड वी एनकरेज यू ऑल.
आज इस सेशन में जितने भी हैं उनमें से अभी जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तपन है या संचल है या अलका है, ये दो तीनों लोग, और हमारा अजय चौबे हैं, मनीष हैं। लेट अस जॉइन टुगेदर और अपनी अपनी एक्सपर्टाइज को शेयर करिए, गाइड करिए। वट एवर एक्सपर्टाइज यू आर हैविंग, शेयर दैट। और आई एम श्योर कि आप दोनों ग्रो करोगे। आप उनके साथ में, वो आपके साथ में। अगर मनीष जो पैसा देते हैं सीए को, अगर वो उस तरीके का उसका आधे में अगर संचल करते हैं और अच्छी करते हैं, संचल को भी काम मिलेगा और मनीष को फायदा होगा। क्योंकि देखिए प्रोफेशनल सीए तो उस तरीके से पूरा अपनी फीस लेगा। अगर हम इस तरीके से कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, तो आई थिंक जरूर कंसेशनल वे में आगे एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। यस। मैं वैसे सर मैं बता दूं, मैं पार्ट टाइम आईसीआई का करियर काउंसलर भी हूं, तो मैं वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में ही करता हूं। तो मेरा मोटिव वही है कि अपना सोसाइटी को किस तरह से ग्रो करना है। तो मेरे कलीग्स जितने भी हैं उसको हैंड होल्डिंग का मैं काम ऑलरेडी कर रहा हूं। मैं मुझे बहुत ही खुशी मिलेगी कि मेरे साथ कोई पर्सन जुड़ करके मैं उसको कुछ हेल्प कर पाता हूँ। मुझे बहुत खुशी गुड, वेरी नाइस, एक्सीलेंट। यही स्पिरिट की जरूरत है। देन ओनली वी कैन ग्रो फर्दर, ऑल ऑफ अस टुगेदर। यस, और बताइए, एनी अदर क्वेश्चन और सजेशन और फीडबैक? विनोद सर कुछ कह रहे थे। हाँ विनोद। अजय चौबे सर बोल रहे हैं कि आई हैव अ क्वेश्चन, आई थिंक वो मीटिंग में। हाँ मनीष, हेलो। हाँ सर कहें। मनीष सर, हमारी स्टार्टअप महोत्सव में भी बात हुई थी इग्नू में अभी, तो हम उसको कैरी आउट कर लेते हैं। और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनसे भी रहेगा कि ई स्किल भारत में हम ई स्किल भारत संवाद जैसा शुरू करने चाह रहे हैं। ई स्किल भारत संवाद, तो वो संवाद में एंटरप्रेन्योर भी रहेंगे, अदर पर्सन्स भी रहेंगे, तो आप भी उसमें जुड़ जाएंगे तो आपका एक पूरा का पूरा सेशन बन जाएगा। तो जैसा शर्मा सर ने कहा ना कि आप वन तो वॉलेंट्री कर सकते हो और सेकेंडरी आप पेड बेसिस कर सकते हो। तो आप ई स्किल भारत के थ्रू वॉलेंट्री अपना एक पूरा सेशन दे देंगे तो वो पब्लिसाइज भी हो जाएगा ई स्किल भारत की व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब कम्युनिटी के थ्रू। एंड आप और टेक्नो एज और जुड़ जाएगा। आप कोशिश ये कर लेते हैं कि दिसंबर थोड़ा सा टाइट जा रहा है, हम जनवरी 2024 के फर्स्ट वीक में प्लान कर सकते हैं। आपका हो जाए, शर्मा सर भी आकर के ई स्किल भारत पर अगर एक लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे और सुजाता मैम, ज्योत्सना मैम, तो वो एक सीरीज शुरू हो जाएगी ई स्किल भारत संवाद के तौर पे। तो पब्लिसिटी भी दोनों साइड से हो जाएगी। तो उसके पहले आप एक पूरा मॉड्यूल क्रिएट कर दीजिएगा डिजिटल मार्केटिंग पर। 1 महीने का टाइम है आपके पास। देन हम जनवरी फर्स्ट वीक में उसको शुरू कर लेंगे एंड पब्लिसिटी भी अच्छी हो जाएगी लास्ट 2 वीक ऑफ दिसंबर में। ओके ओके, श्योर। आपकी तरफ से एग्री है ये आपने स्टार्टअप महोत्सव में प्रॉमिस किया था? बिल्कुल बिल्कुल एग्री है मेरी तरफ से। ठीक ठीक, ओके, फिर हम बात कर लेते हैं उसके ऊपर। थैंक यू सो मच। और भी कोई अगर जुड़ना चाहे ई स्किल भारत के साथ मेंबरशिप या एम्बेसडर के तौर पर? ये सब डिस्कशन सेशन के बाद about your respective this thing sessions and all. अजय कुमार चौबे, आप बाद में बात कीजिए डायरेक्टली उन्हें कॉल करके या अदरवाइज। ओके मैम, रेखा नायक रेज हैंड। हाँ रेखा जी, आप पूछिए, आपका क्या क्वेश्चन है? हेलो हेलो जी। हेलो, हाँ जी, हाँ, Good आवाज आ morning. रही है? बिल्कुल। अरे मैम, मुझे एक बात पूछना था कि हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं मतलब छोटे लेवल पे, बराबर, और उसको छोटे लेवल पे बेचते भी है, लेकिन एक बड़े पैमाने पे उसको कैसे बेचते हैं, वो एक सेशन होना चाहिए। ठीक है, हम ध्यान में रखेंगे। अब हम जो नेक्स्ट सेशन करेंगे नहीं, वो एक छोटे मिनट, लेवल पे एक स्टार्ट मिनट। करने के बाद एक्सपेंशन या स्केलेबिलिटी के ऊपर उसमें रहेगा। बाकी शर्मा जी सेलिंग आपको मैडम यहाँ पे बहुत अच्छी ये सब औरतें बनाती है, बहुत ही अच्छा, लेकिन उनका सेलिंग, मेरा सेलिंग नॉलेज भी एकदम जीरो है, मुझे ऐसा लगता है। रेखा, हमें ये अपना अपना वीडियो ऑन करिए पहले। रेखा नायक, हाँ सर। हाँ वीडियो ऑन करिए अपना। हाँ किया सर। हाँ, अब ये बताओ क्या प्रोडक्ट बनाती हो?
सर हम लोग तो अभी वो बनाते हैं किसानों के झुमके और फिर बनियन बनियन ये क्या बनाना फाइबर्स है ना, हाँ, उसके छोटे छोटे प्रोडक्ट बनाते हैं सर। और उसको कैसे कौन कौन बनाता है और कैसे उसको सेल करते हैं, अभी कैसे सेल करते हैं? मतलब अभी हमारी एक शक्ति मंडल है, उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा आते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा वाले, और वो हाँ, हमको सिखा के जाते हैं। तो अच्छा, वो कहाँ हमको रहते हो बताओ रेखा, कहाँ रहते अरे हैं आप? बहुत बहुत विलेज है सर, ये बाजवा करके। नहीं, कहाँ कौन से, और उसमें महाराष्ट्र में? हाँ, भारत में गोरवा करके है, बड़ौदा में गोरवा है ना, गोरवा तो जानते होंगे सब। हाँ, बड़ौदा के पास में आप? हाँ अच्छा, अभी इसको आप हमारे साथ ना अलग से डिस्कस करिए, और हम चाहते हैं कि आप इसको भी जैसे ये इन बाकी लोगों के जो प्रोडक्ट स्टार्टअप है, हम्म, आप भी उस तरीके से ले जा सकती हो। कौन सा प्रोग्राम कर रहे हो हमारे यहाँ से? मैं यहाँ आपके यहाँ पे मैं जुड़ी थी, ये इग्नू में हमारा एक प्रोडक्ट था बनाना नहीं, फाइबर इग्नू से का। कौन सा कोर्स कर रहे हो? मैं इग्नू से तो एमसीए कर रही हूँ सर। एमसीए कर रहे हो? हाँ, और ठीक है, ये तो एमसीए कर सखी रहे हैं। मंडल करके है, एक सखी मंडल करके है गवर्नमेंट का। उसमें मैंने देखा कि औरतें बहुत ही टैलेंटेड है, बट उनको सिर्फ चाहिए कि एक सेलिंग कैसे करते हैं, पैकेजिंग कैसे करते हैं, तो फिर उनका देखो अच्छा होगा। इसलिए मैं इसमें ज्वाइन हुई कि मुझे कुछ तो नॉलेज मिलेगी ऐसा करके। बिल्कुल ज्वाइन करो, और आगे से भी ज्वाइन करना। और अभी हमने इस चैट में एक लिंक दिया है व्हाट्सएप ग्रुप का। अच्छा ये सबके लिए मैं बता रहा हूँ, जो जो भी इस ग्रुप के मेंबर नहीं है उनको व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक है, और जिसको इंटरेस्ट है वो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। ठीक है, तो क्या रहेगा, आपस में जुड़े रहेंगे आप लोग, और फिर एक दूसरे से जो लर्निंग होगी वो रहेगी। और रेखा, आप अपने काम को जरूर आगे लेके जाइए, हम उसमें क्या मदद कर सकते हैं, वी विल सर्टेनली डिस्कस, डिटेल में डिस्कस करते हैं इसको। और आप तो अच्छा सर, हमारा एमसीए तो कर बहुत रहे हो, तो फोकस है। टेक्निकल हो, उसको टेक्निकल टेक्नोलॉजी का भी यूज करिए। सॉफ्टवेयर हाँ बनाइए, वेबसाइट बनाइए, मोबाइल बनाइए, और प्रोडक्ट को उसके थ्रू लॉन्च करिए, बेचिए। ये सारा आप करिएगा, और आप कर सकती हैं। आपको वेबसाइट बनाना आता है? हाँ, मैं सर टीचर हूँ सर। तो बताओ यहाँ है। मैं टीचर हूँ, कंप्यूटर टीचर। हाँ, तो फिर तो आपको करना चाहिए इस तरीके की सारी चीजें, जो है टीचर लेकिन हो, करना टेक्निकल पर्सन चाहिए, हो। देखिए करना तो चाहिए पर एकदम सही रास्ते पे करना है, मतलब सही वे पे करना चाहिए ना। वो वे नहीं मिल रहा, अगर सक्सेस नहीं हुए चलिए, तो ये कोई थोड़ा बात गलत नहीं, है। वी विल ट्राई टू हेल्प यू, हम आपके साथ में कोशिश करेंगे। और ये जो मैं हैंड होल्डिंग की जो बात कर रहा हूँ, अभी हाँ यहाँ इस ग्रुप में से कौन रेखा के साथ में हैंड होल्डिंग करने के लिए तैयार है? कोई है जो आप गाइड कर सकते हैं इनको, रेखा को? प्लीज प्लीज। बताइए, इस ग्रुप में से कौन हो सकता है जो गाइड करे? हाँ विनोद, हाँ विनोद सर तैयार हुए। आई कैन सर, मनीष पांडे हियर। मैं जानना चाहूंगा कि इनका प्रोडक्ट कैसा है, और कैसी भी हेल्प, अगर मैं किसी भी काम आ पाऊँ तो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी ही होगी। इसको सेपरेट एक सेशन आपके साथ में इनका इंटरेक्शन कराएंगे, बात जी, करेंगे, और फिर आप करिएगा। ठीक है, ठीक है सर। ओके, वेरी नाइस, गुड। एंड सोनकर कुछ कहना चाह रहे हैं। सोनकर, काफी देर से यू आर ट्राइंग टू से समथिंग। सोनकर, तो एक्चुअली सर, हेलो यस यस, सर, आई एम लिसनिंग, आप सबको सब सब सुन रहा हूँ सर, बट राइट नाउ आई वाज इन अ मेट्रो, सो आई वाज अनएबल टू टॉक एंड डिस्कस माय डिटेल्स। आपने ग्रुप बनाया है, सो वी विल बी कनेक्टेड एंड वी विल डिस्कस मोर। एंड आप टॉकिंग अबाउट माय एक्सपर्टाइज सर, आई एम मुझे सेल्स और मार्केटिंग एक्सपर्टाइज है, एंड बेसिकली स्टूडेंट यूनियन है मेरा, स्टूडेंट लीडर हूँ मैं बेसिकली। बट अपार्ट फ्रॉम दैट उसको बिजनेस से कैसे रिलेट करना है, तो मैंने एक तरीका निकाला है कि जो मैम बात कर रही थी, फैकल्टीज और स्टूडेंट्स को जोड़ना, और अलग ऑफिशियल पर्सन जो मतलब जो खाली अपने जॉब और रूटीन में ही मतलब व्यस्त रहते हैं,
बट वो काम मतलब कुछ स्टार्टअप या फिर जो भी प्लान करते हैं वो कर नहीं पाते हैं, पर उनके पास एक नेटवर्क और एक टीम की कमी होती है। सो आई एम वर्किंग ऑन दैट। मेरे पास नेटवर्क है, आई एम वर्किंग ऑन नेटवर्क। सो आई थिंक अभी आई वांट मोर डिस्कशन एंड मोर गाइडेंस ऑन दैट कि आप लोग के साथ, एंड हाउ कैन आई कनेक्ट एंड किस पॉइंट में आई कैन बेनिफिट फॉर ऑल ऑफ अस। तो दैट इज नीडेड एंड ओवर टू यू सर, थैंक यू। यस सोनकर, अच्छी बात है, आपका इंटरेस्ट है। हम एक तो अगर आपका एक्सपर्टाइज है मार्केटिंग की और उसकी, तो देखिए कि किस तरीके से एक दूसरे को मदद कर सकते हो, एक बात। दूसरा कि आप क्या करना चाहते हैं, वो अगर इफ यू वांट टू टेक सम इनिशिएटिव टुवर्ड्स स्टार्टअप और सेटिंग अप योर सम एंटरप्राइज, तो वो आपने अगर सोचा है तो ठीक है, इनिशिएटिव लिया हुआ है तब अच्छी बात है, उसको डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं। नहीं तो यू कैन थिंक ऑफ डूइंग समथिंग लाइक दैट। Okay. Sir, I have already done it. I have already done that. I have registered a means I have not registered a company. मैंने एक आइडिया क्रिएट किया है, मैंने आइडिया पे इम्प्लीमेंट कर दिया, वर्क कर दिया, विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन, विदाउट एनीथिंग, जस्ट टू चेक आउट द मार्केट, हाउ द रिस्पॉन्स, हाउ द पीपल कनेक्टिंग ओवर इट। सो अभी कुछ रजिस्टर्ड नहीं है सर, नो गाइडेंस ऑन की हाउ टू सेट अप अ कंपनी, वो सारी चीजें डिटेल्स पता है, बट आई एम जस्ट वर्किंग ऑन एन आइडिया। अभी फ्रीलांसिंग अपनी खुद की टीम क्रिएट करके छोटी सी, और उसी पे अच्छा, वर्क किया। ऐसे ही शुरुआत होती है। आई थिंक अगर उस आइडिया का आप क्लियर है, उसकी फिजिबिलिटी, वायबिलिटी एंड ऑल दोज एस्पेक्ट्स आपने देख लिए हैं, तो आगे उसमें बढ़िए। एंड वी विल ट्राई टू हेल्प यू, गाइड यू इन दैट कॉन्टेक्स्ट। कीप इन टच विद अस। कहाँ? दिल्ली? आई होप दिल्ली में रहते हैं। सर मैं गोरखपुर का हूँ फिलहाल, करेंटली मैं दिल्ली आया हूँ कुछ काम से ही, इन्हीं सब काम से, थोड़ा सा और टीम और लोगों से मिले। मेट्रो में चल रहा है। मनीष तो गोरखपुर से ही है। मिस्टर सोनाकर, मैं पिपराइज गोरखपुर से हूँ, आप मुझसे फिजिकली भी मिल सकते हैं। और मैं भी वहीं रहता हूँ, पादरी बाजार के पास ही, उसी रोड पे रहता हूँ, आपके घर के नियरेस्ट ही हूँ। सो दैट्स व्हाई आई 10 वाज किलोमीटर का लाइक डिस्टेंस है सर, इनके घर से हमारे तो घर का। देखो दुनिया कितनी छोटी है। जी सर। दुनिया कितनी छोटी है, यहीं दोनों लोग जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गए, एंड देन दैट इज द एडवांटेज। और टेक एडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ नेटवर्किंग, और आगे एक दूसरे को सपोर्ट करिए, बढ़िए। कीप इन टच विद अस, और देखते हैं हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं आगे। श्योर सर। और मनीष जी, मैं भी गोरखपुर यूनिवर्सिटी का ही मतलब रहा हूँ मैं करेंटली लॉयर मींस। ठीक है। सोनकर, I want to say something. सोनकर, आप दिल्ली आएंगे तो जरूर मिलिएगा हम लोगों से इग्नू में, और अदरवाइज आप जरूर कांटेक्ट में रहिए। आई एम श्योर कि ये सबके लिए म्यूचुअली हाईली बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि आपके पास एक यूनिक सेट ऑफ स्किल्स हैं, और वो काफी हेल्प करेगी सबको। ठीक है। Yes. Any other comment or suggestion, please? Vinod, you are there? आप अपना, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बताइए, अगर शेयर कर सकते हो कि वेबसाइट की किस तरीके की क्या है, अपने अपनी इस समय अगर बताना चाहते हैं तो। सर मेरी रिक्वायरमेंट है कि जैसे जो प्रोडक्ट अभी जैसे ऑनलाइन जो है नेट के थ्रू तो बुक हो जाता है, लेकिन जैसे कई बार किसी कस्टमर ने पेमेंट डालनी होती है ना सर, तो उसका मैं चाह रहा हूँ कि जैसे लिंक बनता है ना, तो पेमेंट उसी थ्रू डाइवर्ट होके आ जाए। होता है कि ऐसे प्रोडक्ट तो हम भेज देते हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि वो ऑनलाइन पेमेंट नहीं आती। तो ये मैं चाह रहा हूँ पेमेंट लिंक किस टाइप से बने कि पेमेंट भी रिसीव होती रहे साथ के साथ। वेबसाइट पे आपको पेमेंट का इंटीग्रेशन चाहिए कि पेमेंट लिंक का सॉल्यूशन चाहिए? दोनों चाहिए ना, कि जैसे मान लो कोई कस्टमर ने कोई अभी जो है तो मेरे गूगल के थ्रू बनी हुई है वो फ्री वाली जो है, जी मेरी वेबसाइट जी नहीं जी है, वो मैंने खुद ही क्रिएट कर जी। रखी है। तो उसमें क्या होता है कि ओके जैसे कोई सर्च मारता है तो सर्च से नंबर आ जाता है, नंबर के ओके थ्रू ओके। तो है तो कॉल आके प्रोडक्ट बुक हो जाता है, सामान जी भी हम भेज देते हैं कोरियर से, लेकिन पेमेंट सर, नहीं आते ना। ऐसे कई बार होता है कि नहीं, कस्टमर लिंक के थ्रू पेमेंट करना चाहता है, तो वो फैसिलिटी वी चाहता कैन टोटली ऑटोमेट योर बिजनेस ऑनलाइन। हम लोग एक ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं जहाँ है। पे हाँ जी। टोटल पेमेंट इंटीग्रेशन होगा।
एंड हाँ जी डायरेक्टली कस्टमर वहाँ पे ऐड टू कार्ट करेगा एंड टोटल मतलब पूरे सेल परचेज में आपका कोई रोल नहीं होगा, कस्टमर इटसेल्फ पेमेंट वगैरह करके, लाइक जैसे आप एग्जांपल ले लो ई कॉमर्स वेबसाइट्स का, वैसे ही वहाँ पे हो जाएगा। वी कैन डू दिस फॉर यू। हाँ, तो बस यही मैं चाह रहा था ना कि जैसे अब होता क्या है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसे कंपनी कांटेक्ट करती है, यहाँ पे ना चंडीगढ़ में इनका ऑफिस है, तो उनके जी आगे विजिट करके तो ले जाते हैं, क्योंकि वो उनकी बुकिंग किसी और के थ्रू होती है, वो तो उसके बाद वो डाइवर्ट करते हैं, जैसे कि कोई क्वेरी उनके थ्रू किसी ने बुक की है तो वो मेरे से सामान रेडी करा के ले जाते हैं, लेकिन उसका मेरे को कोई बेनिफिट नहीं ना आता। जी। एक्चुअली तो अगर मैं आप ये अपना अपना खुद का ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, उसको खुद को प्रमोट कर सकते हैं, तो आप एक ग्रॉस मार्जिन आपका बढ़ जाएगा, उसमें आपका थर्ड पार्टी को कुछ नहीं देना पड़ेगा। कहने का मतलब यही है ना कि अभी जो है तो थ्रू में होता है कि सोच करो जी अमेजोन या दूसरा जो उसके थ्रू आता है, तो बेनिफिट तो जो मान लो मार्जिन है वो तो वो ले जाते हैं, मुझे तो खाली वही वैल्यू मिलती है ना, जो भी मान लो 70-80-100 रुपए जो रेट देंगे वही मिलेगा, उसमें जो ऊपर का मार्जिन है वो उन्हीं को चला जाता है, तो अपने को कोई बेनिफिट नहीं ना उस चीज से होता है। सर विनोद हमारे विनोद मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसे मनीष कह रहे हैं ना उस तरीके, जैसे अमेजोन जैसी ही एक अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनवाओ जी जी और जी मनीष से बात करो, क्योंकि जब आप अपना बिजनेस कर रहे हो, इतना सारा जी बढ़ गया है, उसको आगे तक और बढ़ाना है, तो आपके जी पास जी में इस तरीके की एक अपनी वेबसाइट होनी चाहिए, जिसमें हाँ जी हाँ सारे जी प्रोडक्ट का डिस्प्ले भी हो, क्या क्या प्रोडक्ट आप बनाते हैं, उनका हाँ रेट जी हाँ भी आप जी बताइए, और फिर हाँ जी पेमेंट का भी उसी के साथ इंटीग्रेट करवाइए और मनीष के साथ बात करिए। मनीष जी और जी इनकी जो कंपनी है वो आपके लिए बनाएंगी, बना करके ये है कि जो मार्केट रेट्स है उससे कम में आप बनाइए, ये हम जरूर इंश्योर करेंगे, तो उसमें आप दोनों का जी फायदा है, क्योंकि आप मार्केट में जाएंगे आपको ज्यादा मिलेगा, मनीष हाँ को जी एक कस्टमर मिलेगा और आपके थ्रू उनकी पब्लिसिटी भी होगी, एक इस हाँ जी तरीके हाँ का। जी तो ये यही मैं चाहता हूँ कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आप सब आगे बढ़े, तो जी इनके जी साथ बात करिए। और मनीष आज इस प्रोग्राम के बाद में यू विल जी जी राइट सर इन ग्रुप कि आप क्या क्या सर्विसेज देते हैं, आपकी कंपनी क्या क्या करती है, जो कि अपने जो ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगी। ठीक है। जी जी हाँ ठीक है। ठीक है। यस, एनी अदर थिंग? सर एक्चुअली मैंने एक ई कॉमर्स वेबसाइट जो हमने हाल ही में उस पर वर्क किया है, उसको मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, जो हमारे पोर्टफोलियो में है, तो वहाँ पे देख सकते हैं कि सारा पेमेंट वगैरह जितनी सिस्टम सोर्स करके उनको दिया हुआ है animexfit.com। ठीक है, इसको देखिए कि किस तरीके की वेबसाइट बनेगी और उसमें आपका क्या किस तरीके से सब लोगों का चेंज चेंज की जरूरत है, अकॉर्डिंगली वो कस्टमाइज करके दैट कैन बी डन। यस। सो सुजाता, अगर कुछ और नहीं है सवाल जवाब, तो यू कैन कंक्लूड, एंड थैंक्स टू ऑल एंड स्पेशली मनीष। Yeah, Dr. Sharma, it was a very interactive and एक very मिनट, interesting एक session. चीज और मैं अभी थोड़ा कहूंगा मनीष के लिए काम। देखिए, आपका जो प्रेजेंटेशन था ना वो बहुत अच्छा था, आपने बहुत अच्छी उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की हुई है, और मैं ये कहूंगा कि उस प्रेजेंटेशन को एक एक आर्टिकल की फॉर्म में लिख दो, लिख सकते हो जी सर बिल्कुल। उसको, कि जैसे आपने कहा कि स्टार्टअप कैसे कंपनी रजिस्टर कराएं, तो उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या होती है, फिर उसके बाद में ये जरूरत है, इतनी फीस की जरूरत है, ये सब कुछ आपने जो जो स्लाइड बनाई है उसी को थोड़ा सा आपने जो बोला है वो स्लाइड के साथ जोड़ते हुए एक एक लेख लिख दो उसका, हिंदी में अंग्रेजी में जिसमें आपको कंफर्टेबल हो लिख दो, और वो भेज दो सुजाता मैडम को। ठीक है, जो जी हमारा सर। न्यूज़लेटर आता है उसमें हम उसको छाप देंगे। छापने से क्या फायदा होगा, जी आज आपने जितना भी बताया है वो एक तरीके से लिखा हुआ सबके पास पहुंच जाएगा, समझ में ना, जी सर। ये काम और है मेरी तरफ से आपके लिए। थैंक यू ठीक है, सर, आप करते हैं कंटिन्यू। इसमें भेज दूंगा जी। यस सुजाता, you can So, open. yeah, let us wind up the session now. It is already 12:30. So, it was really a very interactive session. Manish, बहुत अच्छा presentation था, बहुत informative था. Thank you so much. And we are looking forward to much
more associations in future also, where the peers, some of the entrepreneurs get to mentor and help the peers also. So once again, thank you so much, Manish, and I thank all the participants who joined in, my colleagues, Dr. Josna Dikshit and Dr. Momita Das for joining in. Thank you so much. Thanks a lot. And also thanks to Dr. Sharma for his support.